Okay. I assume so. All your kids are in grade 1, right? And everybody must have got my worksheet also. I sent a link so everybody could have downloaded, right? Anybody has gone through the my worksheets? So there Yes, sir. is there is addition, subtraction, multiplication, and all of them, right? And up to 999 numbers, name, and that also something is there. Correct, correct. So there is number before, number after, number between, Yeah. and this is from lower grade to basically they're given whatever worksheet, and there are many of them. There is addition, subtraction. There are more worksheets, but I have sent some set of worksheets, okay, where you can take a printout in the PDF format, so you can take a printout or make them right. Okay, so now where is the pain area? Okay, the purpose of this is I'll just brief you about and give you some techniques where you can improve their mental maths or maybe simple calculation, which is very basic for them to know is addition, subtraction, multiplication, and not a division for grade 1, but eventually they will know multiplication also to the level they will not be introduced in grade 1. But if you want to prepare your child little bit early, I'll give you a technique where you can prepare with a very ease, because I personally believe that they have a lot of time as of now in grade 1 or senior KG or grade 2 as compared to whatever they study, and they have a lot of grasping capacity, and you can explore that. And there is no need to send it to any classes or something like that. You can do only if you spend 10 minutes a day. Okay, you can do wonderful results. Okay, so the purpose was that you yourself can do something at a very simple pace, very comfortable pace. Even they don't know that they are learning, and with a playful manner, they will learn and they enjoy. So basically, idea is that in the very initial age, if you create an interest for a subject, okay, then they will not have a fear of the subject at later stage. So that is the whole purpose. And many of you on the group, they have asked us, sir, anything for grade 1? I can take a class, but then my classes are usually online. And till grade 2, I usually don't recommend to put it in any of the classes. Okay. Because then parent also has to sit and some. It is not that I have many students where I taken a classes. They are all free classes. Okay. If you want, maybe somewhere in November, I'll take one of classes for your kids also. If you want me to take it, that will be all free. But only thing is, I want to see whether, and I want, whenever I conduct these classes, you can attend the classes, but as a silent spectator. You have not to prompt whether they are going wrong also, that is okay. When you are taking time to solve, that is also okay. There, because there will be instances when I'll have an open round where I'll ask them, okay, anybody can answer. So there will be a lot of chaos. ठीक है सब लोग shout करेंगे, but that is the activity what exactly I conduct. So I want them to participate with a simple question like 2 plus 3, they will all know. So they will shout who wants to do it fast and all that. So this is I'll be taking, I'll just see, but then see, yesterday I told, day before yesterday I told, I want minimum what 50 participant. The reason I asked for this, I know there's not 30 to 40% people will join, even if they confirm. So that is the reason I requested, because this is my experience for decades. Whenever I conduct sessions, online, offline, 30 to more than 30 to 40% will not turn out, and I'll prove that not more than 25 to 30 people will join in the total course of our session. Even I send a reminder, because it's a Sunday morning, people are lazy, they will be sleeping. ठीक है, so कोई problem नहीं है. ठीक है, that's the reason I choose Sunday, because everybody has a free time on Sunday. और 9 बजे इसके रखो, आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपके लंच के पहले टाइम होगा. सो दैट इज द रीजन आई चूज दिस स्लॉट. ठीक है, तो बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस जाता है टाइम सिलेक्ट करने में. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ देम आर मॉम्स. तो बोलेगे सर 7 बजे रख दो, तो बोलेगे सर उठते नहीं, हम उठे तो हमको खाना बनाना पड़ता है. ठीक है, सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ता है. ठीक है, मॉम डजंट हैव दे वर्क 24/7 365 days. सो दैट इज सैल्यूट फॉर देम. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस. ओके, आई नॉट श्योर. हाय बेटा, हाउ आर यू? हाय, तू भी उड़ गई बेटा इतने? ओ, दोनों उड़ गई है, ऑल पिंकी बेबीज.
मम्मी भी पिंकी है, वाओ। Sir, actually we are outside. That's why we are out of station. ओह वेरी गुड। स्टिल आप देखो वेकेशन में डेडिकेशन देखो, बच्चे की हाँ माँ का sir. तीन आउट स्टेशन में है, छुट्टियां मना रहे हैं फिर भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू मैम। Yeah, welcome. ठीक है, so those who don't know me, my name is Hiren Desai. I conduct this kind of many sessions. I send lot of worksheets for the practice, and this is all free of cost. And I'm running this for more than a decade now. See, after the WhatsApp, my task has become very easy. पहले I used to do with the Facebook or Google emails and all that. But now after the WhatsApp came, my task has become easy. To send the details to the parents or everything become bit easier for me. And sometimes, usually in a year, I conduct minimum 15 to 20 of different grades parent sessions or sometimes student session. All are this is free. Just to educate and make a better world, to make sure that everything, and there are very few sessions are available which are available. Maybe they charge 99, 299 or 399. And even I thought of doing this. क्योंकि जब पैसा भले 100 रुपीज हो ना, पीपल आर कॉशियस कि मेरे को जाना है, ठीक है, मैटर इज नॉट 100 रुपीज। लेकिन जो 50 जनों ने ओके किया था उसमें से अभी कितने आए हैं? देयर आर 17 पीपल केम, राइट, तो 1/3, ठीक है। और मैंने बोला 30 का अगर पार हो गया, 30 का आंकड़ा आज के दिन में, आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। ऑल द 50%, एंड देवर 120 पीपल send the email for the worksheet and I send it to everyone, and there are more than 300 participants in the group. But ठीक है, all those who are serious, I am happy. Okay, now आपका बताओ pain area. See, I understand there is a addition, subtraction, multiplication. There are the three areas what we should focus right now as a grade 1. Okay, multiplication a little late, but anything you want, any specific to be covered, you tell me, so I'll note down and we cover that. Anything specific you want me to tell, okay, what exactly to be done? अच्छा, those who did not have a breakfast, they want to have it in my class, वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। My class is very open, even for the student, they are allowed to eat in my class, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो सेम विद द पेरेंट्स ऑल्सो, आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ने माइक वीडियो ऑफ रखा है, माइक ऑफ रखा है, तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा दो लोग सुन रहे नहीं सुन रहे। मे भी हो सकता है वो लोग सो भी गए साथ में लॉग इन करके, ठीक है। सो दैट इज वाई रिक्वेस्टेड कि आप वीडियो ऑन रखो, तो एटलीस्ट मेरे को समझ में आएगा कि कौन अटेंटिव है, ठीक है। सो एनी पर्टिकुलर एरिया यू वांट मी टू कवर, अदरवाइज आई विल गो अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल। एनीथिंग, ऑल जागरूक पीपल हैव पुट ऑन द वीडियो, बाकी सारे अभी भी ऑफ ही है। So one question is in subtraction. देखो When ब्रेकफास्ट बन ही रहा है अभी तो। वेरी गुड मैम, कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाइए मैम, बताइए। यस, in subtraction, when Yeah. the number lower number is bigger than the upper number, that is taking on to the next count. 18 minus 9, if I say. So 8 minus 9 is not going to happen. So they have to remove it from 1. Correct. That over going to the next number is how to explain that concept to the kid. Addition, it becomes very easy, but for subtraction, it becomes very difficult. Very good, ma'am. Ma'am, you tell me husband and wife, out of these two, who is difficult to understand or impossible to understand? Wife is Very difficult. good. देखो आपने खुद admit किया, right? ठीक है. So here also in my mathematics, I have a family. Okay. Plus, okay, if I given a choice and I give you this idea, so at least you understand why it is easy or something to do it, right? Now, addition is basically forward. Okay, so counting, when we teach them, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and all that, right? So basically we always go forward. So adding is very easy for them because we teach them all the same thing. Okay, subtraction is reverse order. You have to count ulta, 19, 17, 16, 15, 14, like this. And if you tell me 1 to 100, they will be very easy to do it. Even if for you, if I say 1 to 100, you will be without error, you will all say 1 to 100. लेकिन अगर I tell me 100 to 1, it will take some time. Mistake तो होगा, definitely होगा,
out of 10, 100 people, if I ask, tell me 100 to 1 person can tell errorlessly, fluently. और वो भी उससे प्रैक्टिस किया होगा तो, नहीं प्रैक्टिस किया तो till 90, 80 they will go. बाद में कभी ना कभी 77, 76, 75, 74, 73, 74 वापस आ जाएगा. Because your mind is trained like that. Okay, आपने जब से सीखा है, you are trained like this. And best effective way, अगर आपके बच्चे को आप सिखा सकते हो उल्टा बोलना भी, इवन अल्फाबेट्स A to Z, Z to तो मैं भी नहीं बोल पाता, मैंने ट्राई किया बहुत बार. ठीक है, Z to बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है. मैं जाता हूँ P तक जाता हूँ, फिर वापस उल्टा हो जाता है. ठीक है, बट देयर आर पीपल, आई हैव सीन पीपल इन लाइफ जो Z to धड़ 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 A तक बोलते हैं. But this is the reason what I am telling you is practice makes the man, women, children, everybody perfect. So आप कितना इनोवेटिव तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे. एंड इट्स अ बोरिंग थिंग. अब मैम रोटियां बना रही है यहाँ पे, आप पूछो उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है. लेकिन बोरिंग काम करने में ही एडवेंचर खर्चा होता है. बोरिंग काम करने में एवरीबडी दोज हु आर डूइंग वर्क, I think they are one of the doctors also, Reshma Desai. Okay, there may some professional also. There is somebody housewife. कोई ना कोई काम हम रिपीटेडली करते हैं, which is boring in nature, right? मैं सेशन लेता हूँ, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है. मेरे को मजा आता है if I go to out session, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखूं, ओके, मनाली जाऊं, बर्फ में खेलूं. लेकिन जब आप एडवेंचर करते हो तब को खर्चा होता है. जब बोरिंग काम करते हो आपको पैसा मिलता है. ठीक है, जब आप एडवेंचर करोगे तो आपका खर्चा होगा. सो बेसिकली व्हेन यू डू समथिंग ऑफ योर नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल रूटीन में भी जब ये मैम ने अगर खाना बनाना बंद कर दिया, बीएल मैम ने, सारे जन उसके पीछे पड़ेंगे, पाँव पड़ेंगे, मम्मी बनाओ खाना, मैडम जी खाना बनाओ, हम भूख लगी है, राइट? लेकिन वो बोरिंग काम है, लेकिन करना पड़ता है. ठीक है, तो सिमिलरली बच्चों को भी आप डांटते होगे, लेकिन इफ ऐसे आप उसको बोलोगे, स्पेशली लोअर किड्स, दे आर वेरी इजी टू हैंडल. उनको अगर थोड़ी सी लालच दे दो, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, दे विल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इट. उनके लिए आप रोल मॉडल हो, पेरेंट्स. ठीक है, वो आप जो बोलोगे करते हो. आप उसकी खाली चिट चैट सुनो, स्कूल में ये हुआ ये हुआ, उन लोग इतनी बकवास करेंगे घर पे आके जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा. सब में स्कूल में किसने क्या किया, कितने फ्रेंड ने किया, ये किया, वो सब कुछ बोले, लेकिन गेट इन्वॉल्व. आपको नहीं भी इंटरेस्ट है, आप उसको पूछो अच्छा स्कूल में क्या हुआ, टेक इन्वॉल्व इनटू दैट. अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा आपकी बात सुने तो मेक देम फ्रेंड्स. अगर आप खाली ऑर्डर, यू बिकम अ जज एंड सीधा ऑर्डर ऑर्डर करोगे, वो भी प्रिजनर बोलेगा आपको जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करता. ठीक है, ट्राई टू फाइंड सम इनोवेटिव वे टू इंटरेक्ट विद देम. एंड उसको नहीं समझ में आया वैसे आप सिखाओ उसको, तो वो सीखेगा आपसे, 100% सीखेगा. और अगर वो एक टीम बैठ गई, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है. आई हैव सीन पेरेंट्स हु आर डूइंग होम स्कूलिंग, उसके पेरेंट खुद पढ़ाते हैं. ठीक है, उसको कोई स्कूलिंग किया अभी एक नहीं, 10th तक 11th तक खुद पढ़ते हैं. और पेरेंट स्टूडेंट इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उसको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती. दे आर सेल्फ सफिशिएंट एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न. ऑल्दो आई एम इनटू प्रोफेशन, मेरी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, बट आई नो it is very difficult task. Not all parents can do it, whether they are busy with work, they have a hectic schedule, बहुत ज्यादा उनको काम होता है. ठीक है, तो it is very difficult. Sometimes बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं हमारा बच्चा हमारे पास पढ़ता ही नहीं है, इंक्लूडिंग माय चाइल्ड. ठीक है, सो होता है कि पापा ना बहुत डीप में जाते हैं. मेरी डॉटर खुद बोलती है पापा ना इतना डीप में जाते हैं कि हमको इतनी जरूरत ही नहीं पढ़ने की. बट मेरा स्टाइल यही पढ़ाने का, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ. ठीक है, अनलेस यू अंडरस्टैंड, बट दे विल लर्न व्हेन दे बिकम मदर. वो भी सोचेगा कि नहीं पापा ठीक बोल रहे थे. ठीक है, सो इवेंचुअली वी अंडरस्टैंड ऑल दिस इन वेरी लेटर पार्ट ऑफ अवर लाइफ. और हम हर एक पेरेंट, एज अ पेरेंट ऑल्सो, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ ट्यूटर राइट नाउ, आई एम टेकिंग एज अ पेरेंट, व्हाटएवर मिस्टेक वी हैव डन इन आवर लाइफ, वी विश कि हमारे बच्चे ना करें. फॉर ग्रेटर एग्जाम्पल इज मी माई सेल्फ. मेरी डॉटर अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है. वी आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज ऑन हर. उसको मालूम भी है कि क्या फीस हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं. हम बता रहे, रोज मेरी वाइफ का झगड़ा होता है उसके साथ, रोज, एवरी डे टेंट्रम रोज होता है. वी से यूटिलाइज योर टाइम, व्हाटएवर मिस्टेक वी हैव डन डोंट डू इट. लेकिन नहीं होता. दे विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर स्टिल 15, 16. दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन टाइम. दे विल अंडरस्टैंड व्हेन दे बिकम ओल्ड.
and we want कि ये mistake ना हो. So initially the purpose is this session is majorly coming back to this कि आपके बच्चों को जब आप इतना क्वालिटी अंदर डाल दोगे कि सेल्फ स्टडी द बेस्ट वे टू स्टडी, okay, and different ways, teach him the different, him or her different way to teach, okay. So आपको इनोवेटिव रिजल्ट मिलेंगे और बहुत बेनिफिट मिलेगा. I'll tell you right now, we are on 8th of October. मैं आपको गारंटी देता हूँ, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, आपके 1 to 9 के टेबल किसी को नहीं आता होगा. वेरी रेयर, मतलब आउट ऑफ दिस जितने भी फ्रेंड प्रेजेंट है, किसके बच्चे को 1 to 9 टेबल, 1 to 10 का टेबल ऑनेस्टली आता है, पूरा आता है. सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट. एडिशन मेंटली कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. सो इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा टाइम लेते बिकॉज आई एम चैलेंजिंग इट. तो मैंने 6 महीने का टाइम लाइन दिया है. अगर आप सिंसियरली करोगे, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा. 1 महीने के अंदर मेरी वर्कशीट ऑलरेडी मैंने आपको शेयर की. नाउ हाउ टू यूटिलाइज, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. कितने जन को लगता है कि टेबल बोलना चाहिए या रिपीटेड लिखना चाहिए, उससे टेबल बेटर होगा, मल्टीप्लीकेशन बेटर होगा? कितने को लगता है? वेरी गुड, फोरम्स, ओके. तो मैं सपोज FA3 का टेबल 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 ऐसे लिखते हैं हम लोग, राइट. हमने इसे सीखा है, राइट, करेक्ट. किसी के सिबलिंग है यहाँ पे, मतलब जो एल्डर एल्डर है, मेरे को एक तो मालूम है, मेरे को आई थिंक वन मैम आई नो, उन्होंने मेरे को रिसेंटली कनेक्ट किया था. उनका नाम यहाँ पे स्नेहा मैम. स्नेहा मैम है कि चली गई? आई थिंक शी लेफ्ट. I'm there, sir, but I have a younger sibling. My daughter is just one. I don't have an elder one. अच्छा, हाँ, नहीं, और भी एक स्नेहा मैम है, वो भी आने वाले थे, ठीक है. और भी एक स्नेहा मैम है. सो वो शी आई नो, शी हैज वन फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, एक 5th स्टैंडर्ड में है. दोज हु हैव एनी एल्डर सिबलिंग्स? अच्छा, आपने किसी ने देखा होगा. तो आपको बताता हूँ ये क्या होगा जब आप इस तरीके से टेबल सिखाते हो. अगर आप 7 8 पूछोगे उसको, तो 56 नहीं बोलेगा. वो क्या करेगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 2 21, 28, 35, 30, क्योंकि आपने ऐसे सिखाया उसको. वो 7 8 डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, ठीक है. अब नाउ सिंस यू आर ऑल पेरेंट्स, एवरीबडी नोज टेबल. ऑब्वियसली जो इतने ग्रुप में सबको टेबल्स मालूम है, 1 to 10 का टेबल सबको मालूम है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? एंड दिस इज हाउ आई वांट यू टू टीच योर चाइल्ड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन. एंड अज्यूम दैट आई एम योर किड, ठीक है. मैं उतना ही दिमाग लगाऊंगा जितना 1 साल का बच्चा, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा लगाता है, ठीक है. यू अज्यूम दैट आई एम एंड यू आर माई मदर और फादर, हुएवर देयर, ठीक है. आप मेरे को बताओ कि सर मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैम मल्टीप्लिकेशन क्या है? Repetitive addition. Very good. Thank you very much. Everybody agrees what she said? Everybody agrees? जो एग्री करता है हाथ ऊपर करो. एक ही जन एग्री कर रहे हैं. देयर इज अ सिस्टम, यहाँ पे रिएक्शन, हाँ, वेरी गुड. वहां पे आप सिस्टम में ऑन कर सकते हो तो आपका नंबर आगे आ जाएगा. वेरी गुड. सो एवरीबडी अग्रीज. नाउ व्हाट शी सेड इज करेक्ट इन ऑल योर फॉर्म, व्हाटएवर सेड. अब एज अ किड मैंने क्या समझा मैं वो बताता हूँ, ठीक है. आई शेयर माई स्क्रीन, ठीक है. अब मैं आप बताता हूँ जो मैंने एज अ चाइल्ड व्हाट आई अंडरस्टूड. एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन, करेक्ट. मैम ने बोला रिपीटेड एडिशन, राइट. करेक्ट. So I keep it correct. I am multiplying 7 numbers, right? Okay, so I'll put okay. Now what I should put here? मैम ने बोला, स्नेहा मैम ने बोला रिपीटेड ऐड करो, मैंने रिपीटेडली ऐड कर दिया. अब मेरे को ब्लैंक स्पेस में क्या डालूं यहाँ पे? बताइए.
मैम आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, पूरम मैम। पूरम मैम, you can open the mic and tell, no problem. Yeah, it is adding same numbers repeatedly, but Correct. you have to count also that how many times, So like count, if I I'm am adding, counting I am doing 7 but times same मैंने 7 नंबर। numbers, करेक्ट। तो 1 मैम ने plus वो 1. नहीं बोला, नेहा मैम ने वो नहीं बोला था। मैंने बोला था ना आई एम ग्रेड 6, आई एम ग्रेड 1, सो 6 years old हूँ। मेरे को रिपीट एडिशन वाला है, आपने सेम नंबर नहीं बोला था, राइट। सो मैंने मर्जी से जो नंबर मेरे को अच्छे लगते मैंने ऐड कर दिया है। सो व्हेन यू, दिस इज कंसेप्ट, व्हेन यू टीज देम रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर, ठीक है। आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। अब मल्टीप्लीकेशन चाहिए क्यों? फर्स्ट थिंग, वाई से कि मल्टीप्लीकेशन चाहिए क्यों? आपको बोला कि मेरे को एडिशन से काम चला, मैं मल्टीप्लीकेशन क्यों सीखूं? ऑब्वियसली कोई बोलेगा जब मेरा एक काम हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन क्यों करूं? Why I should use multiplication when I have addition in my, I know addition, right? I am very comfortable with addition. Why I should do multiplication? Yes, yes, yeah, ma'am. Yes, it is for grade 1. Your child is in which grade, ma'am? Yeah, ma'am. Okay, so you are in the right forum. Yeah, tell me. Quickly. Yes. ऋतुजा मैम का एक है कि क्विकली करोगे, राइट? और कोई? मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन क्विकली? वो बोलेगा मेरे लिए एडिशन ज्यादा इजी है, मतलब आप बोलो 7 5 तो 35 ज्यादा, 7 7 7 करना, 5 5 5 करना मेरे लिए ज्यादा इजी है। So I think multi addition is much quicker than multiplication. आप कैसे करोगे? उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? मल्टीप्लिकेशन यूज करो, एडिशन मत करो। हाँ करेक्ट। रिजय मैम आपके आई, यू कैन ओपन, दिस इज ओपन फोरम मैम, आप अपना माइक ओपन करो और बात करो बिंदास। Extra मेहनत क्यों करनी है if you are getting it quickly? Like लेकिन why you उसको have to एक्सप्लेन, do अग्रीड, लेकिन वो तो GN? आपको मालूम है ना एक्स्ट्रा मेहनत लगती है एडिशन में। बच्चों को कैसे सिखाओगे? व्हाट यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट? 1 minute मैम, यू विल से पॉपअप मैम। ऋतुजा मैम आपको पॉपअप आया होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हो। Yeah, हाँ actually, ठीक है। I was not able to find the mic. ना ठीक है, अभी आप ऑन ही रखो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है, डिस्कशन ना ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो डिस्कशन सबको समझ में आएगा। चैट सिर्फ मेरे को दिखेगा, Right, right. और किसको नहीं दिखेगा कि चैट, मतलब रिकॉर्डिंग में भी चैट नहीं दिखेगा आपको, Mm-hmm. ठीक है। सो आप बात कर सकते हो। हाउ विल यू एक्सप्लेन कि आपको? Yeah, मतलब अभी है कि अभी आपको लग रहा है कि एक प्लस 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 करना इजी है क्योंकि सिर्फ एडिशन ही आ रहा है। एक बार मल्टीप्लिकेशन आएगा तो विद इन अ सेकंड विल गेट टू नो कि इसका आंसर क्या है। बराबर है, लेकिन मैम वो तो अभी तो मैं आपका बच्चा हूँ ना, मैं तो आप 6 years का हूँ। अब हाँ, तो बाल हम हट लोग तो, साथ में एक मैं उसे सम दूंगी, तू ये ऐड कर 6 टाइम्स और मैं सामने तुझे मल्टीप्लाई का आंसर देती हूँ। देखते हैं किसका फास्ट होता है। लेकिन क्योंकि बराबर है मैम, लेकिन उसको तो तो क्या आ 6, गया, उसको मल्टीप्लिकेशन मालूम ही नहीं ना, आपको तो मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करना है। तो वही तो उसे सिखाना पड़ेगा। देखो मेरा फास्ट तो आपका भी हो जाएगा, तो आप मेरे पास से सीख लो। करेक्ट, तो सीख लो। तो वो मल्टीप्लिकेशन अभी एग्जैक्टली मैं वो बता रहा हूँ। नाउ सी, इफ यू सी देयर आर, ओके, एवरीबडी हैज कॉइन्स, ओके, आप कनेक्ट करो कॉइन्स को, ठीक है। 10 20 एक टाइप के कॉइन्स को, ओके, 5 रुपी का, 10 रुपी का कॉइन, ओके, आप कलेक्ट करो उसको। 1 रुपी, 2 रुपीज ऑल्सो, ओके। पहले उसको इजी मल्टीप्लिकेशन सिखाओ, उसको बोला 100 कॉइन, ओके, 100 कॉइन आपके पास हो। अब आपको करना है तो बोला काउंट करो, तो करेगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 100 हो गया। करेक्ट, तो उसको बोलेगा वो एवरी टाइम उसको करना पड़ेगा। सो बोलेगा उसको 500 पहुंचने के लिए कंटाल जाएगा, वो नहीं करेगा, ठीक है। उसको बोलता है अभी 100 है तेरे पास कॉइन्स, काउंट कर खाली 100 कॉइन्स, तो वो इजिली काउंट करेगा। और एवरी कॉइन इज 5 रुपी कॉइन। अब उसको लो 5 × 100, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज रिपीटेडली तुम ऐड करते हो सेम नंबर। सो दिस बिकम मच इजियर। 5 × 100 इज 500। सेकेंडली जीरो को इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीरो का मल्टीप्लाई 10 100 1000 का मल्टीप्लाई, वो बड़े बड़े नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे व्हेन दे दो 1 to 10 का टेबल। फिर बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। बट अंडरस्टूड, दिस इज हाउ यू कैन टीच देम। नाउ इफ यू वांट टू से काउंट द नंबर्स, काउंट द, जैसे बहुत मिक्स करके दे दो, दिस इज सम एक्टिविटी आई एम गिविंग यू, कि उनको वो दे विल एंजॉय। करेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन दे दो उसको, 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन, 5 रुपी का कॉइन, 10 रुपी का कॉइन, तो सारे कॉइन दे दो उसको, बोला टोटल करके बता कितना है। सो व्हाट इज द टोटल? आपको काउंट करना था, टोटल क्या होता है?
ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 2000 रुपया, 1000 रुपया बहुत इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपया बहुत सारे कॉइन्स आता है, कलेक्ट करो सारे कॉइन्स, ठीक है, कलेक्ट करो, एक बैग में रखो, जो उसका एजुकेशन वाला है पार्ट, उसको कलेक्ट करो कॉइन, उसको निकाल के रख दो, ये बोला ये काउंट करो, ये काउंट करो, ये काउंट करो, एवरी टाइम अलग अलग, एक बार तुम काउंट करो, तुम एक बार दो, उसको बोलो कि थोड़ा तुम निकाल के उसको दो, उसमें से थोड़े कॉइन बोला तुम मेरे को निकाल के दे, यू मेक देयर पैल्स, उसको बोलो कि तुम काउंट करो, मैं काउंट करती हूँ, कितना टाइम लगता है अपने को, लेट्स सी, एंड ही विल हैव 5 + 2 + 1 फिर 10 + 5 प्लस, ये डिफरेंट तरीके से काउंट करेगा। अब उसको सिखाना ये है कि आप ग्रुप करो उसको, 1 को अलग निकालो, 2 को अलग निकालो, 5 के अलग निकालो, 10 के अलग निकालो, एंड देन यू मल्टीप्लाई, करेक्ट। सो दिस बिकम टास्क इजियर, फास्ट, एरर का चांस बहुत कम है, बिकॉज यू आर डूइंग एडिशन ओनली विद द 4 थिंग्स, करेक्ट। वो डेफिनेटली वही काउंट करेगा, जब वो आपको पहले देना, वो 5 करेगा, फिर 2 7 करेगा, फिर 1 करेगा, 8 करेगा, फिर ऐसे, तो ही विल ओनली यूज एडिशन, ही और शी, ही विल यूज ओनली एडिशन, राइट। अब इसको बताओ, तो these are the activities where you can show them, and practically it is very effective way to do it. तो आपका मल्टीप्लिकेशन सॉर्टेड हो गया। अब प्रॉब्लम तो आ गया, आपके पास 10 रुपए का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, अब उसके बाद हो गया आपके कॉइन हो गए 8 10, ट्राई टू मेक श्योर दैट 10 से ज्यादा कॉइन ना हो किसी में, क्योंकि उनको टेबल, आपका ऑब्जेक्टिव है पहले 10 का टेबल बनाना, एक बार 1 to 10 का टेबल आ गया, फिर आप उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपको कैसे बिल्ड करना है वो भी मैं दिखाता हूँ, एंड आई शो सम गुड टेक्निक्स, ठीक है। यूजुअली मैं सेकंड ग्रेड को सिखाता हूँ, बट यू आर ऑल पेरेंट्स, मैं आपको दिखाऊंगा, दोज हु कैन डू इट दे विल डू इट, मतलब मेरे को श्योर है, मैं अगर 100 जन को बताऊंगा ना, उसमें 10 जन इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं कितनी वर्कशीट दे दूँ, बोलेगा हमसे नहीं होता है, क्योंकि आप एंथुसियास्ट, ये हम लोग जो आज कर रहे हैं ना, दिस इज अ सेशन वेर आई एम कॉलिंग यू फॉर समथिंग विच फॉर्चुनेटली अभी 28 जन 27 जन हो गए हैं, करेक्ट। सो एटलीस्ट वी आर रीच टू 50% मार्क, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। सो लेकिन जहां पे ये जब मैं बोलूंगा ना, अगर मैं रेगुलर कंडक्ट करूँ ये सेशंस, स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस होते जाएंगे, इवन आई कंडक्ट फ्री सेशंस, किसी को संडे को कहाँ बाहर जाना है, किसी का कोई ओपन हाउस है तो किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, आई विल बी देयर, बट कोई नहीं आएगा, मतलब इवेंचुअली 1-2 जन यहाँ पे आएगा, इवन आई कंडक्ट फ्री सेशन तभी भी नहीं आएंगे, 15-20 जन से ज्यादा, बहुत हाई नंबर बोल रहा हूँ, तभी भी नहीं आएंगे। एंड वो जब कंटिन्यूटी नहीं होगी ना, तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई आई एम गिविंग यू समथिंग विच यू कैन डू इट योरसेल्फ, और आपकी कंटिन्यूटी वहां पे रहेगी। जो डेडिकेटली करेगा वो डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट करेगा, सर आपने बता दी सारी चीजें, मेरा बच्चा ये सारा सीख गया है, ठीक है। सो आई गिव यू 2-3 मेथड्स। नाउ टेबल के लिए ना मैंने एक वर्कशीट दी, बहुत सारी वर्कशीट दी मैंने, टेबल्स की वर्कशीट है, करंट 10 पीडीएफ है, 10 एक्सेल फाइल भी है, ठीक है। अब जब 2 वर्कशीट है, आप रिपीटली उसको प्रिंट कराते रहो, उसको देते रहो 1 by 1, ठीक है। और उसके साथ एक सॉल्यूशन शीट भी है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने टेबल का सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है। वो सॉल्यूशन मैंने, ऐसा तो नहीं ना, हर एक के घर पे चार्ट भी होता है, ठीक है। एक 15 साल पहले मेरे घर पे ना सिर्फ चार्ट ही चार्ट थे, मेरे बेडरूम में पूरे चार्ट ही चार्ट लगे थे, और कुछ नहीं, हमारा वॉल दिखता ही नहीं था, जितने बड़े बड़े चार्ट मिलते थे हमने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ऑक्यूपेशन के, और जितने चार्ट मिलते थे हमने सब चार्ट मेरे बेडरूम में लगा दिए थे, ठीक है। मतलब वो बच्चा जब देखे, ठीक है, एक रूम ऐसा बनाओ जिसको आपको किसी को नहीं दिखाना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा, वो डेकोरेटिवली बहुत वियर्ड दिखेगा, लेकिन उसका बहुत इफेक्टिव काम है। एक बार कलर कराना पड़ेगा, लेकिन वो 2-3 साल तक आप फॉलो करो इस चीज को, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, जो आपको सिखाना है ना उसको प्रेजेंट कर दो सामने, वो रोज उठेगा। अब हमने सुना होगा ना, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हम उसके सामने अच्छा बच्चे का फोटो रख देते हैं, भगवान का फोटो रख देते हैं, क्यों रखता है, क्योंकि रोज सामने वो देखेगा तो उसका वाइब्स अंदर जाता है, ठीक है। सो बनते हम गीता पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीज पढ़ते हैं उस टाइम पे, हम हॉरर फिल्म नहीं देखते हैं, करेक्ट। सो जो डरावनी चीजें होती है तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम जब खुद डरते हैं तो बच्चा भी वो में डरता है, वो हम जब खुश होते हैं तो बच्चा भी खुश होता है, क्लियर। तो बस यही साइकोलॉजी है, ब्रेन को ऐसे ट्रेन करो कि रिपीटेड ऐसी इनोवेटिव तरीके से दिखाओ कि उसको जल्दी से वो ग्रास्प कर पाए, क्लियर, विथ नॉट मच ऑफ एफर्ट। आप बोलोगे पढ़ने बैठो, वो नहीं बैठेगा, अब उसके वो खेलना है तो खेलेगा, वो कार्ड्स यूज करो, प्लेइंग कार्ड्स, उसको अलग अलग कलर से, अलग अलग से उसको बताओ कि ओके ड्रॉ करो, कितना है, क्या आ रहा है, उसको ऐड करो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हाट यू कैन डू, मतलब बहुत सारी जगह, उनो कार्ड उनको अच्छा लगता है,
ठीक है, उनो कार्ड यूज करो। अच्छा, बिजनेस है जिसके पास नंबर है, वेरी इफेक्टिव मेथड। बिजनेस जो आपके पास है वो बहुत अच्छी गेम है। अब उसको लोग उसको बैंकर बनाओ, आप खेलो। बोला तू मेरे को 500 रुपए में दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है, यू टेल मी द चेंज, यू गिव मी चेंज। दिस इज लाइव एप्लीकेशन जो उसको रेगुलर लाइफ में करना होता है। कितने पेरेंट है यहाँ पे, एक तो मिलेगा मेरे को जिसको डर लगता है कि रिक्शा वाले को पैसा देने का ना, तो जिसको 46 रुपीज हुआ, 100 रुपया दे तो कितना आएगा उसको समझ में नहीं आता है, 64 लेना है 54 लेना है। कितने जन है जिसको डर लगता है कि यार ये मालूम नहीं, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। ये कैन ऑनेस्टली बोल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है किसी किसी के साथ, ठीक है। कब लेके आ जाओ, घर पे आके समझ में आता है 10 रुपए कम हो गया, 10 रुपए ज्यादा आ गया, ठीक है। सो ये आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो वो सब्जी वाला देगा, एप्पल लेंगे, बनाना लेंगे, ऑरेंज लेंगे। तो अभी तो चलो राउंड अमाउंट में सारी चीजें होती है, लेकिन पहले था तो कम में होता था, 5 रुपए में, 7 रुपए में। आई डोंट नो हाउ ओल्ड द जनरेशन इज, बट हमारे जमाना में हमने 3 रुपए का डजन केला भी खरीदा है। अभी जो 3 रुपए 4 रुपए का एक केला था, हमने 3 रुपए डजन खरीदा है। वड़ा पाव मैंने 25 पैसे में खाया है, ठीक है, मिनिमम स्कूल टाइम। गोल्ड का ज्वेलरी हिस्सा, ये क्या लिखा है, एक मिनट ना, किसने बोला है? गोल्ड का ज्वेलरी हिस्सा नहीं करते थोड़े सर, एक ही है, एक और है, स्वाति मैम, मिटलानी। स्वाति मैम, आप क्या बोलना चाहते हो? सर गोल्ड की ज्वेलरी का जो हिसाब रहता है ना, वो नहीं हो पाता करेक्टली। क्या करते हो हिसाब में? हिसाब हिसाब ही नहीं समझता सर, क्या करते नहीं समझता ही नहीं है वो। नहीं, आप बाई करते हो आप सेल करते हो? नहीं, बाय करना जब भी रहता है तभी की बात है सर, मैम वो तो था अभी अभी। कि गोल्ड का भाव पकड़ो, उसकी मजूरी पकड़ो, फिर इतना ग्राम हुआ उसको जोड़ो। वो चीज लाइक इतनी होती नहीं है, कैसे सभी ऐसे क्विकली कैलकुलेटर के बिना भी कर सकते हैं। आई कांट डू दैट, मुझे तो डर ही लगता है वो चीज से। वेरी गुड। तो वो करते हैं वो लोग क्योंकि उनका रोज प्रैक्टिस है। जो जो वहां पे जो सेल्स गर्ल या जो सेल्स मैनेजर होते हैं, आप मानोगे नहीं मैम, बहुत जन ना इवन ग्रेजुएट भी नहीं होते हैं। सी, ऐसे लाइक पुराने जमाने के लोग नहीं बोलते लाइक उसको ऐसे लाइक पाई और ऐसे करके वो लोग ऐसे गिनती करते हैं। वो तो कुछ मेरे तो दिमाग से पूरा ऊपर से मैम ही बाउंसर ही आप जाता है। जितना जितना मेरे डैड ने, मैंने देखा है, माय डैड इज 87 हाँ। राइट नाउ, ओके। सो हाँ। उनका जो पढ़ाई हम जब डिस्कस करते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, तो वो जो हम बता दे रहे हैं कि हम लोग, सी हमारा मैथ्स अभी बहुत इजी हो गया है कंपेरेटिवली। मतलब मैंने भी सीखा वो बहुत इजी था, अभी जो बच्चे सीख रहे हैं वो भी इजी है डिफरेंट मेथड में। लेकिन मेरे डैड को जो हम टेबल बोलते हैं ना, 1 2 होल नंबर का टेबल मैंने भेजा है। हाँ। मेरे डैड का टेबल था 1 का हाफ का टेबल, 3/4 का टेबल, 1/4 का टेबल, 1 अच्छा। 1.5 का टेबल, 1.5 का टेबल, सवा का टेबल, वैसे टेबल होते थे। ओके। तो उनको फ्रैक्शन उनके लिए बहुत, आज की डेट में डैड को याद है, ही इज 87, आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो हाँ। बोलते हैं, ठीक है। आधा का टेबल तो फिर भी इजी है, सवा का टेबल, मतलब सवा इज 1/4, हाँ। ओके। देन 3/4 का टेबल, 1/4 का टेबल। सो दिस इज ऑल दी यू शुड डू। 3/4 का टेबल डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ। 1 हाफ का, क्वार्टर का, वो सारी चीजें अच्छे वही से हो वही जाएंगे। वो लोग जब भी ऐसे वो कैलकुलेशन करते हैं ना, आई कांट डू दैट। बिकॉज मैम वो आपकी मैं गलती करी। नहीं है, आपकी गलती नहीं, आपने सीखा नहीं उस तरीके से, राइट। अगर आप हाँ। सीखोगे तो वो आ जाएगा आपको। अच्छा, वही जब तो भी ज्वेलरी की ही बात आती ना, तभी तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ। मुझे कोई चाहिए बंदा साथ में कि वो उसका हिसाब करे, फिर नहीं, बाद में वो जाए। तो आपको बिल देता है ना, सी इट इज ऑल कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको वो हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर वहां पे आपको वो पर ग्राम की परसेंटेज में होता है, या तो फिर वो पर ग्राम की होती है। आपको सिर्फ पैसा होना चाहिए आपके पास, बाकी वो सारी चीजें आपके लिए आउटसोर्स कर देंगे। वो तो सर। आप उसको चेकबुक या बैंक अकाउंट का चेकबुक ये लेके जाओ, क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, बाकी सारा वो आपके सर्विस में, तो ठंडा वंडा भी पिलाएंगे, वो वो सब तो कर देंगे। लेकिन अपन को भी आना चाहिए ना, अपन को भी समझना चाहिए कि ये इसने क्या किया। वी ऐसे चीटिंग कोई करता नहीं है, लेकिन फिर वी गेट टू नो कि यस रियली में यही आंसर आ रहा है, हम्म, यही है। वो चीज अपन ये को भी आनी चाहिए। करेक्ट। इज तो द पॉइंट। वो अभी क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं सिखाऊंगा, अब मैं अलग से पेरेंट का सेशन जब लूंगा, हाँ। मैं आई टीच यू दैट, ठीक है। यस। ओके, सो जब, आई बट जॉइन। लेकिन पेरेंट का सेशन पेड होगा, ठीक है। कोई पेरेंट बात नहीं, चलेगा। का इज इट क्योंकि ओके? क्योंकि क्योंकि मैं अभी जो सिखा रहा हूँ ना, जो
अभी आप नहीं सीखे थे अपने स्कूलिंग टाइम में, वो सिखाऊंगा मैं, तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। और जब आपने गोल्ड की बात की तो आपके लिए तो फीस भी बहुत हाई रखूंगा मैं, क्योंकि आप जब गोल्ड आज के टाइम में 60,000 ग्राम का आप गोल्ड बाय कर सकते हो, तब क्या आपके तो पैसा काफी है। कोई बात नहीं, चलेगा सर, लेकिन No कुछ problem. चीज तो आनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट, आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ। एंड दैट इज वेयर देन व्हेन यू गो टू लिटिल कॉम्प्लेक्स पार्ट, ओके, हम्म। बिकॉज इसके अंदर जो आपने बोला ना, उसके अंदर डी मास यूज होता है, कि जहाँ पे आपके परसेंटेज में और मल्टीप्लिकेशन ही होता है, फिर आपकी लोडिंग होती है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है, और फिर जाके आपको वो बनता है पूरा आपका हाँ। कैलकुलेशन। तो उसमें Yes. परसेंटेज भी आता है, एडिशन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, देयर इज Yes. सम ऑर्डर हैज टू फॉलो, ठीक है। Yes. बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो फर्स्ट ग्रेड के लिए काम का नहीं है, ठीक हाँ है। हाँ, सो कम वो तो कम ये जस्ट आपने वो करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट, डाला ना सवाल। यस यस यस। मैडम मैथ्स ऐसी चीजें है जो LIC का है ना, जिंदगी के साथ भी हाँ। जिंदगी के बाद भी, हाँ, मैथ्स ऐसी चीज की जिंदगी के पहले भी जिंदगी के बाद भी एक लेवल बाद ऊपर भी। है मैथ्स। यस डेफिनेटली। आपको कोई एग्जांपल देगा कि मैथ्स आपकी लाइफ में आपके पैदा होने के पहले कैसे आता है? नहीं, वो चीज तो नहीं पता सर कि कैसा मैं आपको आता बता है। दूं, मैं आपको और सबको मालूम है, जो आज ये क्लास में है वो सबको मालूम है ये चीज, लेकिन आपने कभी 9 उस तरीके months से of देखा नहीं है। pregnancy में भी, हाँ 9 months of pregnancy करेक्ट, वहां पे आप सोनोग्राफी कराते हो, आपको आपका डॉक्टर हाँ। बताता है कितने weeks का कि आपके बच्चे का हाँ। इतना वीक हो गया, आपके बच्चे का इतना वेट है, आपके बच्चे के हार्ट बीट इतने हैं, तो वो सारी चीजें सब नंबर्स है, सब कुछ काउंट है। आपके बच्चे का इतना वेट है, आपके बच्चे का हाइट इतना है, आपके हाँ, बच्चे का ग्रोथ ये हो रहा है, तो ये सारी चीजें मैथमेटिक्स है। वो बिफोर पैदा होने के उसके, ठीक है, आपके Yes. सारी चीजें उसको उसके रिलेटेड में उसका मैथ्स आ जाता है, ठीक है। हम्म। एंड जब मरता है उसके बाद भी उसका डेथ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, Yes. डेट ऑफ डेथ, ये सब लेके अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करनी है, तो सारी चीजें हम लेके घूमते हैं कि Yes, ये मेरे yes. पापा है, मेरी मम्मी थी, ये सब मेरे नाम पे सब कुछ करो, ठीक है, हमको ऊपर लेके जाना है सब कुछ, बट हम करते हैं बेटे। डेट डेट ऑफ डेथ इज वेयर ही लिव्स टिल द एंड, उसका एज ये डेट पे एक्सपायर हो गया, या फिर ये डेट पे उसका इतना एज था। सो मैथ्स इज बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द डेथ, मैथ्स आपके साथ रहेगा, कुछ रहे ना रहे, ये रहेगा मैथ आपके साथ। सो एंड मैथ्स रियल टाइम में you go anywhere, do anything, from गृहिणी to house husband to a corporate to anything, maths is something that कोई भी इंडस्ट्री हो, डॉक्टर हो या मेडिकल हो या आर्किटेक्टर हो, कुछ हो, आपको मैथ्स लगेगा। बेसिक नेसेसिटीज करेंसी, आपको खाना पीना है तो करेंसी इज वेरी बेसिक नेसेसिटी, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स अ लाइफ स्किल, इट इज नॉट अ एजुकेशन, इट इज अ लाइफ स्किल, आपको उसको सीखना, उसको जीना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई मैंने वो मैच पकड़ा कि मेरी डिमांड कम नहीं होगी कभी भी, ठीक है, ये चलती रहेगी, ठीक है। इधर हाय हाय बेटा, या यू आर ब्रेकिंग मैम, बट ठीक है, ऑडियो मैम आपका वीडियो बंद कर दो, आप आपका वीडियो बंद, Okay. हाँ ओके, नाउ इट विल बी Yeah, is ओके, it- टेल, या इट इज बेटर बट स्टिल ब्रेकिंग। Nowadays we are so much concentrating on Vedic maths and all, all those easy techniques to do calculation. करेक्ट And at the same time, we ask our children, or even we are experienced that we have to do all that rectifying thing for the tables, right? करेक्ट, So now also, so I am many times confused, like where exactly, of course, for Vedic, when they are big calculation, I think that would be very helpful. But Correct. for grade 1, 2, when they are supposed to do the rectifying, is something that they should be doing, or they should be इसको- understanding. They Correct. should be understanding concept, I agree. करेक्ट, But at the same time, when I think that when we are making them learn on, memorize it, I think that even help the memory, करेक्ट, and it is even very quickest, right? 9 into the 3 is 7 is 63, I can say, right? Because True. we have rectified it for throughout our years. करेक्ट, So what is better? And at the same time, I feel that rectifying definitely improves your memory too. करेक्ट। मैम आपको So मेरे को बताओ, what kind of thing Correct, we should correct. be thinking? I'll come to this, मैम आपने बताओ कि आपके you have only one child who is grade 1, Yeah, I have Okay. only ठीक है, single child one. आपने उसको पोएट्री सिखाई होगी, लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, Yeah. ठीक है, आपने कितने साल हो गए उसको बोला नहीं? हाँ, अभी तो हार्डली, बट उसको पता ही है, वो तो उसको 2-3 पता है। साल का तब। अच्छा, आपने जब आप ऑब्वियसली जब आप आपका एजुकेशन हो गया,
आपने मैरिज हो गया, ठीक है, आपने उस पीरियड में कम से कम 10-12 साल से कभी नहीं बोला होगा उसको, True, ठीक है। but still we know आपने it now. आपने Yes. जब A to Z पढ़ा है, ठीक है, आपने बहुत एजेस में पढ़ा है, बाद में कभी A to Z कभी नहीं पढ़ा, या फिर अल्फाबेट कभी नहीं पढ़ा, 1 to 100 कभी नहीं बोला, करेक्ट। लेकिन फिर भी आपको आपको कभी भी पूछो, वो आपने रट्टा नहीं किया उसको, भले ही रट्टा किया जिस हिसाब से पढ़ा, लेकिन आपने बाद में रिवाइज नहीं किया, कितना भी रट्टा करो आपको याद रहना मुश्किल है। लेकिन ये सारी चीजें आपको कभी भी आप पूछो, आपको याद रहेगी। दिस इज गॉन इनटू परमानेंट मेमोरी। दिस इज अ पैटर्न व्हाट यू लर्न। इसके लिए आपको A to Yes. Z आप बोल Because we पाओगे have 1 to used 100, it so many times. करेक्ट, आपको 1 to, लेकिन आपको 100 to 1 बोलूंगा आप नहीं कर पाओगे। दैट इज द सेम थिंग व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, करेक्ट। Z to A नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डेड अगेंस्ट, देयर आर मेनी मैथ्स। मार्केटिंग के लिए मैम बहुत सारी चीजें, आई मैथ्स, क्यू मैथ्स, फिंगर मैथ्स, आइबेकस, वैदिक मैथ्स, मेंटल मैथ्स, आप अलग अलग टाइप के इतने, क्यू मैथ्स, उसको क्यूबिक मैथ्स, बहुत सारी चीजें ना। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई आपको बोले कि मैम आप हमारे क्लास में भेजो, ये है हम होमवर्क में नहीं मानते हैं, आपकी मर्जी, आपको भेजना है। मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, भले मैं ओल्ड स्कूल से माना जाता हूँ, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स कैन नॉट बी मास्टर। इफ यू थिंक मैं आपको ओरली बताऊंगा आप ये करोगे, विदाउट प्रैक्टिस मैथ कैन नॉट बी मास्टर। मतलब आपको करना है, आप प्रैक्टिस अलग तरीके से करो, दैट इज व्हाई द सेशन इज देयर, राइट। आप प्रैक्टिस इनोवेटिव तरीके से करो, जरूरी नहीं नोटबुक से पेन से करना है। अब जो मैंने कॉइन बताया था, दिस इज वन ऑफ द गुड वे टू डू इट, राइट। आप अगर कोई ट्रैवलिंग में जाते हो, ठीक है, आपको सबसे पहले नंबर का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इफ यू कैन रीड द नंबर वेरी क्विकली, यू इफेक्टिव दिस वे। आप कहाँ घूमने जाते हो, राइट। अभी एक मैम बोले थे, दे आर वेकेशन, राइट, ऑब्वियसली दे आर गोइंग बाय कार और सम व्हीकल, राइट, दे आर ट्रैवलिंग थ्रू रोड, राइट। अब जब रोड पे, इवन इफ यू आर गोइंग बाय फ्लाइट, आपको वहां पे रोड से तो, मतलब फ्लाइट एयरपोर्ट पे तो रहता नहीं कोई, ठीक है, एयरपोर्ट पे जाने के लिए रोड से तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा आपको, करेक्ट। अब जहां पे जो दिखता है उसको, जहां नंबर दिखे उसको, जैसे बहुत सारा है मुंबई में, तो जोज आर इन मुंबई, आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर इन मुंबई और अदर सिटीज, आपको ट्रैफिक बहुत है, करेक्ट। आई एम कमिंग टू दिस, के कौन है, हु इज के टू मी? Yes, sir. I'm. हाँ, हाँ मैम, मैं आता हूँ इसके ऊपर। एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, मैंने अभी, आई डोंट नो व्हेन डिड यू ज्वाइन, बट मैंने बताया था कि अगर आप ढंग से आपके बच्चों को टाइम दो, आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई टेल यू विच आर माई प्रेफरेंसेस, दिस इज माई प्रेफरेंसेस, it may not align to any of you or some of you or some of may not be, but this is, I'll give you according to my experience, I'll tell you which one you should do it and how you should do it. Okay, so coming back to this, what I was telling, कि this is when you teach them in a certain way, when you go out in the road, okay, आप बोलो कि खाली नंबर, depending on her the child age, okay, try to tell me, read the number, उस सीक्वेंस में बोलो जो नंबर है, नंबर प्लेट पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ना, तो खाली 4 नंबर जो लास्ट के जाए, 5 6 7 9 या 2 3 8 9, ऐसे बोलो, जैसे जैसे समझ में आएगा। और उसको बाद में बोलो पूरी नंबर प्लेट पढ़ो, MH02 MH03 और जो भी आपको आता है, राइट, 11 से लेकर, तो अल्फाबेट सारा अरेंज करके उसको करना है, वो भी आएगा। वंस दे मास्टर दिस, उसको बोलो कि अब सारे नंबर के टोटल करके बताओ। अब जब टोटल का एक टेक्निक होता है करने का, ठीक है, आई विल टीच यू सम ऑफ द वे, वेरी गुड। सो ये जब आप करोगे, जो करते हैं वो अच्छा है, बट ये दिस आर द और इनोवेटिव वेज टू डू इट। नाउ टेबल के लिए आई टेल यू वन ट्रिक जो आप इंप्लीमेंट करोगे, एंड इफ यू इंप्लीमेंट, आई कैन गारंटी, आप जितनी फ्रीक्वेंसी से करोगे इतना आपका बच्चे का टेबल हो जाएगा इजी, ठीक है। नाउ हाउ मेनी यू थिंक कि आपको उसको टेबल 1 to 100 जो मैंने पहले बताया था, आई एम अगेंस्ट दैट। मेरा जो वर्कशीट है उसमें देखो, मैंने टेबल नहीं दिया किसी में, मैंने डॉजिंग दिया है, ठीक है। मैंने 2 1 जा या 3 7 जा, 5 8 जा, 9 3 जा, ऐसे अलग अलग करके दिया, राइट। आप मेरे को बताओ कि आपको अगर कुछ सीखना है टेबल, इफ आई एक्सक्लूड द वंस एंड टेंस व्हिच आर इजी वंस, राइट, इफ आई एक्सक्लूड दैट, तो कितने नंबर बचते हैं? वो 20 आपके एक्सक्लूड हो गए, प्लस 8 आपका 10 का टेबल, 1 का टेबल, 8 8 और हो गए, 16 और एक्सक्लूड हो गए। तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितने बचे हैं? टोटल 28 36 कॉम्बिनेशन आपके बाहर हो गए, राइट। 20 20 टोटल 100 कॉम्बिनेशन, 1 to 100 इज 100 कॉम्बिनेशन,
क्लियर? आपके 1 to 10 का टेबल हट गया तो 20 आउट हो गया, बचे 80 में से 10 का 2 to 10, 2 to 8 और 2 to 9 और 1 to 9 का वो निकल गया, राइट? आपका तो आपके बचे और 60 निकल गए, तो 36 इज आउट। बाकी कितने बचे? 64, करेक्ट? एम आई करेक्ट? 64 बचे, और 64 में इफ आई टीच देम 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज सेम थिंग। आपके बचे कितने? 32 कॉम्बिनेशन। सिर्फ आप 32 कॉम्बिनेशन आपको सिखाने में इतनी तकलीफ हो रही है तो क्या करें? करेक्ट? नाउ हाउ टू टीच देम। मेरी वर्कशीट है, वर्कशीट आप दे दो, बोला 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यू गिव देम द टाइम। प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब उसको बताते हो आप ग्रीडी बन जाते हो पेरेंट, ये खत्म करना ही तेरे को, ये खत्म करेगा तो ही होगा। गिव देम टाइम, यू डिसाइड तेरे को कितना करना है, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना करना है। यूजुअली जैसे 10-15 मिनट करना है, डन। ये ले वर्कशीट, शुरू करनी है, ठीक है? 10 मिनट का अलार्म उसके सामने टाइमर लगाओ, और स्टॉप वॉच लगाओ, टाइमर लगा के उसको बोलो कि 10 मिनट अलार्म बजेगा तो उठ जाना। मेरा सॉल्यूशन का शीट है, सॉल्यूशन का शीट उसके सामने रख दो, ठीक है? बोला इसमें सीधा, अगर तेरे को नहीं आता तो इसमें से कॉपी करो। आपने कंसेप्ट पहले सिखा दिया, मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट? मल्टीप्लीकेशन समझ में आया, आपने थोड़ा गेम भी खेला उसके साथ, उसको समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन होता क्या है, करेक्ट? एक बार आपने समझा दिया मल्टीप्लीकेशन क्या है, बाद में आपको करना है कि उसको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। आप बोलते हैं नहीं नहीं रट्टा मारो, जैसे मैम ने बोला आपको टेबल आना चाहिए, बिना देखे बोलो ये करो वो करो। मेरा कंसेप्ट पूरा अलग है, मैं उसको सॉल्यूशन दे देता हूँ, ओके? और आप देख के देखो, अगर नहीं गारंटी है, आई टेल यू, आई विल लूज वॉट एवर यू आर सेइंग। ये प्रूवन मेथड है, 30 years का प्रूवन मेथड है, ठीक है? तो आपको सर रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% रिजल्ट मिलेगा। आई एम नॉट इवन गिविंग 99.9%, आई एम टेलिंग 100% मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम। तो सर आपके हिसाब से हमें वो टेबल रेक्टिफाई नहीं कराना है, हमें वो कॉम्बिनेशन उनको मतलब कराने हैं ऐसे खाली। करेक्ट करेक्ट। आप 4 मैं into 3 का आंसर 12 आएगा ऐसा, हाँ वो कराना है हमें। हाँ ओके यस, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों करा रहा हूँ, राइट? क्योंकि सबसे पहले उसका फियर निकल जाएगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट? सेकेंडली उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे पास सोल्यूशन पड़ा है, मेरे को जब तकलीफ पड़ेगी मैं देख लूंगा, ठीक है? अच्छा, आपके यहाँ पे खाना किसकी हॉबी है बनाना? हॉबी किसकी तो खिचड़ी। किसकी किसकी चपाती बिल्कुल गोल बनती है? मेरी। सबकी? सबकी ना, ऑलमोस्ट सबकी। हम्म, अच्छा, आपने जब चालू किया था सबकी गोल बनती थी? नहीं ना, फिर कैसे होगा? मतलब आपको नींद से उठाया, बिल्कुल आपकी आधी नींद में हो, आप फिर भी आटा बना के आपको देखो तो आपकी नींद में बनाओगे तो रोटी गोल बनेगी। अच्छा, कितने जन रात को वॉशरूम जाने के लिए या पानी पीने के लिए उठते हैं, कितने जन दीवार से टकराते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। क्यों? आप तो अंधेरे में, आपको दिखता नहीं है, फिर हम्म, भी क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में, वो आपका रूम का मैप बना हुआ है। आपको मालूम है, हाथ इतना लंबा करूंगी, 3 स्टेप लेने के बाद हाथ पर करूंगी तो मेरा लाइट चालू होगा, आपको ये मालूम है एग्जैक्टली। और आपका, अच्छा, किसी ने अंधेरे में खाने खाने का ट्राई किया है ना? कि कभी गया कान में, कभी नाक में, कभी मुंह में, अलग अलग जगह पे गया है क्या किधर? अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखता है, फिर भी आपका बिल्कुल हाथ आपके मुंह पे जाता है, राइट? इधर उधर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेंड है ये मैप के ऊपर, उसको मालूम है हाथ के इतने डिस्टेंस में मेरा मुंह है तो वहां पे बिल्कुल जाएगा वो। तो बस यही आपके अनकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन करना है कि वो सारी चीज उसको समझ में आ जाए। आप जब उसको रैंडमली दोगे तो वो पहली बात तो रट्टा नहीं मारेगा, 1 2 सीक्वेंस में नहीं आएगा, सबसे पहला बेनिफिट ये है। सेकंड बेनिफिट, उसको डर निकल जाएगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आप देखोगे ना तो आपको उसको एक कंसेप्ट आना चाहिए कि रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने ये समझा दिया, उसके बाद अगर 1 to 10 का टेबल आ गया, मैं उसके ऊपर 100,000 का टेबल तक बिल्ड कर सकता हूँ, और वो भी मेंटली, उसको कराना भी नहीं पड़ेगा आपको, बट वो पेड सेशन है, ठीक है? वो बच्चे को सिखाता हूँ, Sir, पेरेंट को नहीं सिखाता। sir, I have a question here. या टेल Sir, मी। जैसे you told कि repeated addition कराओ, right? Hmm. So initially should we start giving them like for 2 only? 2, I mean 2 का टेबल के जैसे ही, या फिर 2 का it's going on like कि आप 1 to 9 पूरा एक साथ देना है? नहीं, आप जो भी करो रिपीटेड एडिशन, राइट? उनको एडिशन आता है,
ठीक है, जैसे जैसे नंबर बड़े करते जाओगे ना, आइडियली यू शुड टेक 1 2 5 10, Okay. देन यू इंट्रोड्यूस 3 4 6 7। जब आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी वो सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन है, विच इज 6 to 9। Right. वो Right. आपके साथ से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, वो ज्यादा सबसे हम्म। तकलीफ है। उसके डिफरेंट हम्म। मेथड है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये जब आप करोगे, दिस इज वी आर टॉकिंग अक्टूबर बिफोर क्रिसमस, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा अगर आपको समझ। सेकेंडली, आपको उसको टारगेट क्या देना है। तो आपने दिया, ठीक है, आप इंसेंटिवाइज करो उसको। आपने बोला 10 मिनट, उससे 10 मिनट ले लिया, 5 मिनट 5 मिनट ले लिया, राइट। अगर आप जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाओगे 5-5 मिनट की, अगर दिन में 3 बार कर पाओगे बेस्ट है, नहीं है 2 बार करो, नहीं तो 1 बार तो कराओ ही, लेकिन रोज कराओ कि उसको ऐसा इंसेंटिव दो कि वो खुद कर ले। ठीक है, आप उसको ड्रेस भी दिलाते होंगे, आप गेम्स भी दिलाते होंगे, आप उसको घूमने भी, रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, लेकिन मैप इट विद देयर गुड डीड्स। आप उसको अपने, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोटिवेशन। ठीक है, वो खेलता होगा, उसको ये मत बताओ बेटा यहाँ मैं तेरे लिए पापा से बात कर रही हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ, अंकल से, दादा, नहीं। आप उसको खेलने दो, मेक श्योर दैट ही इज प्रेजेंट इन द रूम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिम, बट डोंट एक्सप्लिसिटली टेल हिम और हर कि तू यहाँ मैं तेरे लिए बात कर रही हूँ, नहीं। आओ, आज जैसे पप्पा एंटर हुआ ना, वो खेल रहा है, अरे मालूम नहीं आज तो आरव ने या विजय ने या अजय ने या ऋत्वी ने क्या मजा क्या किया, वंडरफुल। उसने एक टाइम इतना खतरा, उसको दिमाग में रजिस्टर होगा, यार ये मेरी अच्छी चीज ना रजिस्टर हो रही कहाँ पे। आप जितना मोटिवेट करना, ये ना बलून है, आपका बच्चा बलून है, जितनी हवा भरोगे ना उतना हवा में ऊपर जाएगा। आप हवा भरते जाओ। एक चॉकलेट लेके आओ, बेटा आज तूने इतना अच्छा किया, यू आर वेरी गुड सन, वेरी गुड डॉटर, ये बिहेवियर किया, सबके सामने बताओ कि यार क्या है, ऐसा करके अप्रिशिएट करो उसको, तो उसको लगेगा आई एम डूइंग समथिंग गुड, फिर वो अपने आप करेगा। जब वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपका टास्क 90% खत्म हो जाएगा। आप ऐसे ही देते हो उसको सारी चीजें, राइट, बिना मांगे, बट आप उसको अच्छी रीड से लिंक करो एक बार। ठीक है, आप करके देखो, यू विल फील वंडरफुल, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी। आज का आपके इसके पहले ना मेरा एक सेक्शन था 7 o'clock का, एंड देयर ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। एक बच्ची बोले कि सर मेरे को आराम करना, मैं नहीं आऊंगी। मैंने उसको कल फोन किया, लास्ट टाइम मैंने उसको एक चॉकलेट गिफ्ट किया था, बिकॉज शी वाज कंसेप्चुअल, उसने बहुत अच्छा किया था। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, एंड इट वाज अ फ्री सेशन। ओके, मेरी फ्रेंड है उसकी, उन लोगों के लिए उससे रिक्वेस्ट किया था, तो फ्री सेशन, तो मेरा ऐसा कोई अर्निंग भी नहीं था उसमें। मैंने उसको फोन किया, बोला देखो बेटा एक बार उठना है ना, बोला नेक्स्ट वीक से ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा लेट रखूंगा। अच्छा तेरे को मजा आया कल के सेशन में? तो बोला मजा आया मेरे को। ठीक है, सो बोला आएगी एक दिन मेरे लिए आ जा। ठीक है, सो बाद में तू सो जाना वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट वीक से प्रॉमिस करता हूँ 7 बजे का नहीं रखूंगा मैं। ठीक है, अब वो नहीं आने वाली थी। नाउ देयर आई प्लेड अ साइकोलॉजी, आई प्लेड विद द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, कि उससे बोला यार ये सर तो ठीक बोले, मजा तो आया था मेरे को क्लास में, ठीक है, और कुछ सीखना। बोला मैं आई एम गोइंग टू टेक अ फ्रैक्शन टुमारो। ठीक है, आज का क्लास आधा घंटा ओवररन हो गया, आपके जस्ट 10 मिनट पहले मैंने खत्म किया क्लास। कि बोला मेरे को 9 बजे दूसरा क्लास है। ठीक है, एंड दोज हु वांट टू हैव दैट रिकॉर्डिंग मेरे को बता देना, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपको। ठीक है, इफ यू वांट टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, उसकी भी रिकॉर्डेड है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू कन्विंस, आपकी सबसे बड़ी विजय ये है जब आप बच्चे को अपनी टर्म्स पे काम करने के रेडी करा देते हो। एंड दिस इज ओनली कैन बी डन इफ यू ब्रिंग देम टू अ लेवल वेयर दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द टॉपिक्स। जब आपको इनोवेटिव, देखो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, हर एक दिन पढ़ाते हैं, लेकिन जब इनोवेटिव तरीके से आप पढ़ाते हो उसको, तो बच्चा पढ़ता है, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तब वो पढ़ता है। सो दैट इज हाउ आई वांट टू क्रिएट इनोवेशन, क्रिएट अ इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट कर दिया, मोटिवेट करो उसको, इंसेंटिवाइज करो, ये सारी चीजें जहाँ पे आपको बहुत काम कम लगे। और मैं तो चाहता हूँ कि इतने जितने ज्यादा प्रेजेंट है, आपको कभी कोई ट्यूशन की किसी की जरूरत ना पड़े। एंड दैट इज द तो पर्पज सर आई। ग्रेड, हाँ सर हाँ ग्रेड बताइए। से आप क्या लेते हैं? मतलब ये मेंटल मैथ्स, वैदिक मैथ्स, मतलब I'm एग्जैक्टली इसमें coming. I'm डिफरेंस है? coming to this. See, there are so many things. I math, Q maths, finger maths, mental maths, Vedic maths, abacus. ठीक है. Abacus is the only thing which I don't recommend कि आपको जाना चाहिए, बिकॉज उसमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन था। मैथ्स को समझने के लिए पैटर्न जरूरी है। ओके, अगर आप पैटर्न समझ पाए, नंबर बॉन्ड समझ पाए, तो आपको और करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, एवरीबडी कैन कीप द माइक ऑन।
How many digits are there in mathematics? How many digits are there? 10. करेक्ट. अब अपने बच्चे को पूछ के देखना, वो बच्चा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इनफाइनाइट. अगर 100 बच्चे को पूछा जाए, 90 बच्चे सोचते और हमेशा इनफाइनाइट बोलते, बिना सोचे समय इनफाइनाइट बोल देंगे. लेकिन आप उसको पूछो कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, 100% बोलेंगे 26. 100% क्योंकि उसको सिखाया ऐसे गया है. तो उसको जब आप जैसे चार्मी मैम, there is a background noise. Ma'am, there is a background noise from your side. Okay. Now I am very happy to announce 30 का टोटल पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग मी, हमने 30 टच कर लिया है. So I am very happy today. ठीक है. So now एक जो आपने पूछा था सब्ट्रैक्शन का, राइट. अब एडिशन को ना, एडिशन को जो नॉर्मली मैं कराता हूँ, आई ऑल्सो गिव यू एडिशन में 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. ठीक है, एडिशन में 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. नाउ आपके बच्चे को कितने जन के बच्चे 3 डिजिट बाय 3 डिजिट का एडिशन कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे? नहीं सर, अभी तो स्कूल में सिर्फ वो सिंगल डिजिट का ही चल रहा है. नहीं सर, अभी सिंगल डिजिट ही चल रहा है, सिंगल और 2 डिजिट. ओके, मैं आपको प्रूव कर दूं कि आपका बच्चा विदाउट यू टीचिंग वो 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेगा. बता दो. ठीक है, आप उसको, मैंने वही तो ट्रिक है मैम, उसको बोलो 100 + 200 करेगा वो. 100 + 200 मतलब वो थोड़ा सिखाएंगे तो वो तो करेगा, वो लाइक इजी है. 300 0 और हाँ देखो 300 बोला एक बच्चा, मेरे डार्लिंग बोला 300, राइट. Sir, this kid knows some tricks. Like my daughter also, 1 1s are 2, 5, 10. They know the pattern. Even Right. addition, they know the pattern. And in that pattern, they play. If that we are giving that numbers, bigger numbers also, in pattern they can play. And they do. मैम, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न. मैथ्स जितना इजी सब्जेक्ट है ही नहीं. मैंने क्यों पकड़ा है मैथ्स? मैं मैथ्स के सिवा और कुछ नहीं सीखा. आई एम इंजीनियर बाय एजुकेशन. ठीक है, आई एम 30 years into this industry. ठीक है, माय ग्रेजुएशन वाज डन 93. मेरा बीई का सर्टिफिकेट 93 का, अभी 30 साल के ऊपर हो गया. ठीक है, मैंने मैथ्स क्यों पकड़ा? मैथ्स जैसा इजी है ही नहीं कुछ. सिर्फ 4 ऑपरेटर है, 10 डिजिट है, खत्म. मैथ्स वहां पे खत्म होता है. आगे जाओ तो भी 2-3 और ऑपरेटर आते हैं, उसके बाद खत्म, कुछ नहीं मैथ्स में. ठीक है, तो मैथ्स जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लोगों को वही लगता है. ठीक है, सबको देखो मैथ्स की, सारे जन जाओगे मैथ्स करना है, मैथ्स करना है, क्योंकि दे नो मैथ्स इज लाइफ स्किल. अगर मैथ्स में आपका बच्चा अच्छा हो गया, एंड देयर आई हैव सीन किड्स, दे आर वंडरफुली एक्सीलेंट इन मैथमेटिक्स. और ऐसे भी देखा मैम, मैंने 9th में 8th में बच्चों को देखा, उनको मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में तकलीफ होती है. मे बी उनके एक्सपोजर नहीं हो सकता है कि जहाँ पे किसी शॉर्ट कमिंग्स हो, बट वेरी रेयरली, बहुत बार क्या होता है कि उनको राइट एक्सपोजर नहीं दिया जाता है. मेरे जब क्लासेस होते हैं, बहुत ज्यादा पेरेंट बोलते हैं कि सर आप छोटे बच्चे को इतना फीस क्यों लेते हो. अब मैं उनको बोलता हूँ कि छोटे बच्चे को हैंडल करना वो ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू व्हाट वी कैन डू इट द एल्डर किड्स. एल्डर किड को हमने बता दिया ना, वो लोग सीख लेते हैं, समझ जाते हैं कि ऐसे करना है. उनको डरा धमका सकते हैं, इनको कुछ नहीं कर सकते. उनको जब तक आपने इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया उसका, आप कुछ कर लो. 3 हट होती है, राज हट, बाल हट और स्त्री हट. हट मालूम है ना, जीद. ठीक है, आप तीनों, आप कुछ कर लो, आप नहीं कर सकते हो. एक बार पत्नी ने बोल दिया मैं नहीं करूंगी, सिंपल सा काम, मेरे को पानी का ग्लास नहीं भरना है, नहीं भरना है. आप कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा. फिर आपको बनाना पड़ता है, जब मैम ने बोला एक ज्वेलरी का सेट देना पड़ता है, जब जाके पानी मिलता है आपको, बड़ा महंगा पानी पड़ता है आपको. ठीक है, जैसे बाल हट भी है, उससे बोला आपने कितनी बार हुआ रहेगा, नहीं खाऊंगा मतलब 1 चम्मच नहीं खाएगा. उसका मूड नहीं है उसको खाने का उस टाइम पे. जब आपको इन्वॉल्व करोगे उस टाइम पे, तब वो खाएगा. ठीक है, आप कितनी अच्छी चीज उसको बता दो, देखो मम्मी कितना प्यार कर रही है, प्यार से बाल बना रही है ना. ठीक है. करेक्ट. देखो आय आय आय, यही आपका जो प्यार है वो आप सही जगह पे लगाओ. ठीक है, मेरे कितने स्टूडेंट है वो बोलते कि मेरे को मालूम ही नहीं हमको आता है. इतना पैम्पर्ड चाइल्ड है. प्यार करो, प्यार करना आपका बच्चा है, आपको प्यार करना हक है आपका, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन उनको सर्टेन चीज बताओ, ये तेरी काम. अच्छा कितने जन, चलो आपको तो 6 में, कितने जन अब तक गोद में बिठा के खाना खिलाते हैं?
चले ले ले, एक खाना खा ले जाते, खा लेता है वो, कि उसको मालूम है भूखा नहीं रह पाएगा तो खाना खाना है, ठीक है, उसको मालूम है हम भूख से ज्यादा एनर्जी, हमारी एक ही सोर्स है एनर्जी, वो खाना है, ठीक है, वो नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो चुपचाप खाना खा लेता है, ठीक है। बस आपको उसी स्ट्रेटेजी में यहाँ पे बनाना कि पढ़ना तेरी जरूरत है, अगर तुमने वो उसको कन्विंस कर दिया फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर? सो आपको खाली बनाना है, सर आप मेरा फिर वो क्वेरी सेम है सर, वैदिक मैथ वो सब नहीं पता चला क्या किसमें क्या है। हमारे टाइम पे सिर्फ एक ही मैथ्स, तब टेक्स्ट बुक वाला मैथ्स। मैथ्स अभी भी एक ही है मैम। तो सर ये मैथ्स वैदिक मैथ क्यों मैथ मैथ्स मतलब कि कौन सा अच्छा है क्या अच्छा, राइट आपके पास कार है मैम? आपके पास कार है ना? अरे कौन सी कार है पूछ सकता हूँ? बलिनो। बलिनो है, राइट। मेरे पास है नहीं, लेकिन एसेंट है, लेकिन किसी का नैनो भी होगी, किसी का मर्सिडीज भी होगी, हाँ। BMW भी होगी, राइट। हम्म। आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको क्या लेना है? अभी अपना बजट जो है करेक्ट ना, आपका वो बजट, आपकी देखा रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट वर्सेस बजट जाता है कि आपकी जरूरत है कार हाँ लेने की, वेदर इट इज हाँ रिक्वायर्ड, एक्चुअली रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, हाँ राइट। हाँ पहले हाँ वो हाँ डिसाइड होता है, उसके बाद रिक्वायर्ड करने के बाद बजट देखते हो, आपकी रिक्वायरमेंट देखते हो कि आपको कौन सा अफोर्डेबल है। अब BMW लेने वाला भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ की कार लेता है, ठीक है, वो भी रहता है। आपकी रिक्वायरमेंट जो नैनो में चलता है उसकी भी 4 फ्लोर पे, 4 पहिए पे चलती है, इसकी भी 4 में। अच्छा, दोनों ट्रैफिक में बाजू बाजू में खड़ी होती है, ऐसा भी नहीं, उसके लिए हम्म, BMW के स्पेशल रोड बनाया जाता है ना। नहीं बाजू सही। में नैनो भी है, बाजू में आपकी बेलेनो भी खड़ी होगी, बाजू में मर्सिडीज और BMW सारी एक ही ट्रैफिक में खड़ी होगी, उसके लिए स्पेशल ऊपर से रोड नहीं बनाया जाता है, राइट। तभी भी ये भी इसमें ही ऐसा है कि आपको क्या चाहिए, इसके ऊपर से डिपेंड करता है, ठीक है। हर एक के अलग अलग स्किल्स है, बट ये मार्केटिंग गेम है, हर एक की मेथड अलग है। मैं एबिकस रेकमेंड नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से मेंटल मैथ, जो भी मैंने बोला, मैथ्स किसी भी तरह से करो, ओके उनको स्पीड से करो, उनको पैटर्न सिखाओ। और वैदिक मैथ्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें पैटर्न आती है, बिना पैटर्न के। मैं कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ पे बताऊंगा आपको, जो जो मैंने आपको बताया, अगर टेबल आ गया तो मैं आपको बताऊंगा 100 का टेबल यूं बना पाओगे आप, 99 का टेबल यूं बना पाओगे, विदाउट एनी हैसल। आपके बच्चों को 1 to 10 का टेबल आता है, आपको 100 तक का टेबल मैं आज बताऊंगा आपको कैसे ने। सेकेंडली, एक जन ने क्वेश्चन पूछा था मेरे को, कैरी ओवर में या बोरोइंग में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने बोला था कि आप ना जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था उसको 5 पार्ट में डिवाइड करो। 1 इज विदाउट कैरी, सेकेंड राउंडिंग नंबर, राउंडिंग नंबर इंट्रोड्यूस करो, 10 20 30 40 उसको ऐड करना, वो इजी है उनके लिए, विदाउट कैरी और विदाउट बोरोइंग, राइट। उसके बाद राउंडिंग नंबर टू नॉन राउंडिंग नंबर, उसको बताओ कि 55 + 20 आसानी से हो सकता है, 20 + 52 आसानी से हो सकता है, ठीक है। यू क्रिएट देम, उनको ये समझाओ कि ऐसे हो सकता है। उसके बाद फाइनली आ जाएगा उसको कैरी एंड बोरो, राइट। अब मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में सिखाने जा रहा हूँ आपको, उसके बाद टेबल दिखाऊंगा मैं, बिकॉज आई हैव 20 मिनट्स टू कवर। उसके पहले मैं खाली 2 अभी बता देता हूँ, खाली एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अगर मैं बोलता हूँ जिसको सब्ट्रैक्शन सबको आता है, आई विल टेक 3 digit सब्ट्रैक्शन, बिकॉज वी आर एल्डर पीपल, वी कैन आंसर दिस। और rather give this way। अब इसको कोई एक जन वॉलंटियर बताएगा कि मैं क्या करूं। ये बोरोइंग है, ठीक है, तो बोरो में क्या करेंगे, जो हमको बच्चे को हम सिखाते हैं, 95% ऑफ किड्स और इवन पेरेंट्स डोंट नो दिस, व्हाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2, एक है, आ रहा हूँ, माइक वीडियो ऑन कर बेटा, वेरी गुड। तेरे को सब्ट्रैक्शन आता है बेटा? हाँ बोल। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से कट किया, मेरे को बोरो करना है बेटा, मेरे को होता कि यहाँ पे मैं कट करके क्या लिखूंगा, यहाँ एक 1 लिखना है बाजू में। हाँ, तो ये बेसिकली, चलो मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 4 था, क्या बन गया, 14 बन गया। हाँ मैंने यहाँ 14 से - 9 करना है। वो क्या छोड़ो, आता है 14 माइनस? अच्छा अरे ठीक। वेट 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 मैम, वेट वेट वेट, मेरा फोकस वो नहीं है, वेट, सॉरी सॉरी। मेरा फोकस अलग है सर। आरव, मैंने यहाँ से कितना लिया बेटा? 2 1 लिया ना, 3 से 1 लिया मैंने, राइट, तो 3 2 बन गया, राइट। आई हैव टेकन 1, राइट, है ना बेटा। तो 4 का क्या बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए,
What will Well, happen if one is removed from there? He's asking. I've taken one from here. I am putting it here. So one I've taken from. I should put one here, right? Yeah. So why I'm putting one? I'm not putting one. I am making. Why I'm making 14? Who taught you this, beta? My mother. मदर. मदर को पूछो मदर. मदर बताइए आपने ऐसा क्यों सिखाया उसको? एक दे रहे तो आप यहाँ पे 14 कर रहे हो. एक करना चाहिए आपने. 14 क्यों किया? I never thought about it. Ideally, अगर एक लिया तो 5 होना चाहिए. 14 Correct. क्यों? करेक्ट. ये देखो, और ये करेक्ट भी है. आप जो कर रहे हो वो सिखाया, करेक्ट सिखाया, लेकिन आपको ये मालूम नहीं क्यों कराने का है. ठीक है, बताइए. अभी ये तो आप सिखा रहे हो, राइट? इतना सबने सिखाया है, करेक्ट है ना? अब इसको आप ये कंसेप्ट कैसे सिखाओगे? अब मैं इसको बड़ा नंबर नहीं, थोड़ा छोटा नंबर लेता हूँ, राइट? आई विल टेक अ लिटिल स्मॉलर नंबर, से 32 माइनस 18, करेक्ट? तो नंबर ने भी आपने सिखाया होगा 100%. ये नंबर क्या है? ये नंबर 32, राइट? तो क्या है? अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो तो बेटा क्या होता है? करेक्ट? 30 plus 2. वेरी गुड. जब मैं यहां से बोरो करता हूं तो मैं क्या करता हूं? 2 हो गया. तो कितना बन गया? दिस हैज बिकम 20. तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां से कितना ले रहा हूं मैं? 10 ले रहा हूं, राइट? तो 20 प्लस हाउ मच विल बी 32? 12. Correct? So what I'm borrowing 10. I'm not borrowing 1. Clear? समझ में आया बेटा? Now, if you want to teach this to your child, I'll just briefly put it. You got the concept. It's a place value concept. But अब आपको उसको सिखाना place value क्या है, तो आप क्या बताओगे? आ रहा हूँ. थैंक यू बेटा ज्वाइन करने के लिए. तो तू आया तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया. ठीक है बेटा. अगर मैं बता, मैं तेरे को if I give you 10 rupee coin, आ रहा हूँ. If I give you 10 rupee coin, okay, and I give you one 10 rupee coin, and I give you, and मम्मी ने बोला, mama told you to bring 1 rupee coin from the shop, right? So you come to me, okay, you give me one 10 rupee coin, and I give you one coin of 1 rupee. It is okay with you? You give me 10 rupee coin, right? And I give 1 rupee coin. एक कॉइन के सामने एक कॉइन दिया, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अरे देखो, छोटा बच्चा नहीं मान रहा है. तूने एक मेरे को कॉइन दिया, राइट? मैंने तेरे को एक कॉइन दिया. एक कॉइन के सामने एक कॉइन दिया, क्या प्रॉब्लम है? तो हाउ मेनी कॉइन्स यू वांट? अच्छा, क्यों 10 कॉइन? तू एक कॉइन देगा, मैं तेरे को 10 कॉइन दूं, ऐसा क्यों? उसका आंसर करेक्ट है. बिकॉज 10 ones are you given 10 rupees and he want a 10 rupees in return, right? Correct? So when you give one 10 rupee coin, 1 10 is equal to 10 1. This is the concept what you are using here. Clear? आरो समझ में आया बेटा? So when you cut here, what you are cutting, you are borrowing not 1, you are borrowing 10. So that is why you do 10 plus 4, it will become 14 here, right? Now because they have only 2-digit number right now, but the same thing as a parent, you can understand this is what I am borrowing here. I am borrowing 1,000. Sorry, 100, and I am giving it to 10. So this will become 120. Correct? Every one ratio, there is a difference of 10. Okay, there are multiple of 10. So when you go this way, okay, और मैं आपको, आप जो मैम आपने आरव की मम्मी जो आपने बताया मेरे को, ठीक है, 90% of the parents also don't know this, and even in school they don't teach this. मेरा तो एक्चुअली मैं जितनी बार बोलता हूँ ये सारी चीजें मैं करता हूँ. मेरा एक्चुअली 95 Yes, parents. we didn't know. I at least personally never knew that we had to think about the place, and it is actually we are taking out from 100 and taking out. Correct. Yeah. So this is where this is pure concept. Now you understand. जिसने मेरे को अभी पूछा था कि सर कौन से क्लास में डालो, आप कंसेप्ट क्लास में डालो, आपको सिखाना है तो ये सिखाओ उसको.
हर एक चीज में ना हम नॉर्मली बोलते हैं कि आपके बच्चों को कुछ सिखाना है, आप ये सिखाओ 5WH। अगर ये वो पूछना चालू कर दिया, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, एंड एक और W है, विच। अगर ये 5WH उसने पूछना चालू कर दिया, आपका बच्चा लायक हो गया। नेवर डिस्करेज ऑफ द सिलियस्ट क्वेश्चन व्हाट दे आस्क यू। ठीक है, जितना क्यूरियोसिटी आपने बोला आज तो बच्चा तेरे को नहीं समझ में आएगा, अरे यू विल नॉट अंडरस्टैंड। Whatever difficult question they may ask, try to teach the way they understand it. अगर आपने जब आज डिस्करेज कर दिया उसको कि नहीं तेरे को काम करना है, यू डोंट हैव टू लर्न दिस, ठीक है, तेरा कोई फायदा नहीं है, अभी टाइम है तेरे को, खत्म, उसकी क्यूरियोसिटी आपने खत्म कर दी। उसने आपने दरवाजा बंद कर दिया उसकी तरफ कि इसको मम्मी को या पापा को पूछ के फायदा नहीं हो, तो हमको आंसर देते ही नहीं है। However silly that question is, make sure that you make कितने them क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं पता होता है। ऐसे questions होते एग्जैक्टली। हैं तो इसका। योर चाइल्ड इज बिकम योर टीचर। जो नहीं मालूम है उसको ढूंढो। मैं तो वो एरिया में इंजीनियरिंग किया था जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था। अब तो गूगल आती है आपके पास है, गूगल पे Right. करो, गूगल माता की जय डालो, आपको सारी चीजें मिलेगी। बहुत सिंपल है ढूंढना। उनका कोई इतना नहीं होता कि स्पेस में चंद्रयान कितने टाइम है, वो भी पूछ सकते हो लोग। चंद्रयान आया था, मैंने मैम कितना टाइम लगा उसको जाने के लिए, आपको नहीं मालूम होगा, 100% नहीं मालूम होगा। साउथ पोल में गया, साउथ पोल होता क्या है, कितने टाइम पे लैंड किया। आई वॉज लाइव एट दैट टाइम, मेरा क्लास था, मैंने क्लास रुकाया, मैंने रुको मैं लाइव ऑन करता हूँ, सबको क्लास दिखाया कि चंद्रयान इट इज वन ऑफ द अचीवमेंट। मैंने 10 मिनट के लिए वो पूरा देखा, टेलीकास्ट पूरा दिखाया उनको, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंस्टेंस व्हिच हैपेंस इन वेरी रेयरली। तो यू शुड विटनेस दिस व्हाटएवर यू कैन विटनेस। तो मेरे जितने भी क्लास है सबको रुकाया, बोला रुको मैं ऑन करता हूँ, तुम लोग सब भी देखो। 10 मिनट में अपना कुछ नहीं था। So then what they ask, try to answer whatever you can. अगर नहीं है नोट कर लो, मेक श्योर आज नहीं है आपके पास, कल बोलो। कितने टीचर को आप बोले आई गेट बैक टू यू, गेट बैक, आप अभी तो एक्सपीरियंस होगा। आपके बच्चे जब पूछेंगे ना, वो बोलेगा, टीचर बोलेगा आई गेट बैक, दे विल नेवर गेट बैक टू यू, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं होता है और वो खुद एफर्ट भी लेते करने के लिए। आप अगर एफर्ट आपके बच्चे को चाहिए, आपका बच्चा सीखे, प्लीज मेक श्योर दैट यू आंसर as many as question they ask। और एक लेवल पे आएगा वो खुद सीख जाएगा। एंड मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट बन जाएगा जब उसको सिखाए, बोलो देखो मैं गूगल पे से मेरे को नया आंसर मालूम है, डोंट बी शाय अबाउट टेलिंग देम कि मेरे को नहीं मालूम इसका आंसर, लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। तो एक तो उसको एनकरेज होगा, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछे मम्मी को भी नहीं मालूम, पापा को भी नहीं मालूम है, एंड विच इज परफेक्टली ओके। उसको बोलो कि अपने पास हमको मालूम है लेकिन सब कुछ नहीं मालूम है, विच इज ओके टू नो, बट एटलीस्ट जो मालूम है वो परफेक्ट मालूम होना चाहिए। आप उसको 60 में सर्च करो, गूगल आप उसको करो कि देखो यहाँ पे बहुत सारी इनोवेटिव होती है, यूट्यूब में इतनी सारी चैनल्स होती है, आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छी जगह। लेकिन वो एक दो धारी स्वॉर्ड है, इंटरनेट वो दो धारी स्वॉर्ड है, मोबाइल एक्सेस वो दो धारी स्वॉर्ड है। आपने उसको कर दिया तो वो फिर टिकटॉक, फिर रील्स और ये सारी ना ऑटो फीड आती है वो, और आपके घंटों निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सब जो यहाँ पे जितने कोई बोले मैं रील्स नहीं देखती, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सबने कुछ ना कुछ देखा हुआ है, ठीक है, और वो जाते जाते एक बार चलेगा रील्स में ना, वो कंटिन्यूस फीड आती है, आपका कहाँ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकल गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट्स एडिक्शन, ठीक है। और छोटी छोटी 2-2 मिनट की, अच्छा और एक देख लेती हूँ, अच्छा और एक देख लेते हैं, अच्छा और एक देख लेते हैं। तो और सेकेंडली आपका इंटरेस्ट का कुकिंग का हो गया, आपका ड्रेसिंग का हो गया, कुछ ना कुछ उसके चैनल आ गए, तो चैनल में जाके डांस का हो गया, उसके चैनल में जाके आप देखोगे अच्छा ये और कौन से टाइप के डांस करती है, और कौन से टाइप का ड्रेसिंग ये आता है, कौन से कॉम्बिनेशन है, नेल आर्ट कैसे होती है, अरे बहुत सारी चीजें। मतलब इट इज टाइम कंज्यूमिंग जॉब, और सॉरी टाइम वेस्टिंग जोन। आप उसमें से इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करोगे। बट ऐसे गुड चैनल्स बहुत सारे, मैथ्स के चैनल होते हैं, इंग्लिश के चैनल्स होते हैं, आप उसको सब्सक्राइब करो, उसको चैनल देखो, तो आपके बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया मिलेंगे। आपको कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे चैनल फ्री है, बहुत सारी चीजें आपको ढूंढना है खाली। और हमारी दुकान वही चलती है जहाँ पे पेरेंट आलसी होते हैं। जहाँ पेरेंट आलसी हो गए, हमारा मीटर चालू। जो पेरेंट बोलते हैं कि हमसे नहीं होता है चीज, वहां हमारा मीटर चालू हो जाना है। और आपको करना है अर्लीस्ट व्हाट यू शुड पुट इज 2nd ग्रेड, ओके।
if you want to take one more session, I'll show you how exactly I have lifted. मैंने एक कोर्स बनाया कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में आपको क्या बता सकते हो. मैंने जो वर्कशीट बनाई है बहुत सारी इनोवेटिव वर्कशीट्स है. ठीक है. इफ यू वांट टू क्रिएट सम वर्कशीट, बहुत सारी बुक्स को रेफर करके अलग अलग आइडियाज लेके अलग अलग चीज बना के देखी है. आई विल शो यू वन ऑफ द वर्कशीट जो मेरे क्लासेस में मैं देता हूँ. आई शो यू वन ऑफ द वेरी सिंपल वर्कशीट, वेरी सिंपल एडिशन, राइट. Sir, please share. I have not received your this thing मैंने worksheet. ग्रुप में I have ग्रुप में sent email, in WhatsApp chat as well. मैंने ग्रुप में डाला ना. आप उसको वर्कशीट करके मारोगे तो आपको मिलेगा, लिंक है. आप लिंक में जाके देखो. रिसेंटली मैंने शेयर किया है क्योंकि 120 था, वो गूगल ना बोल रहा था कि आप शेयर मत करो सबको. मैंने सीधा ओपन करके ये कर दिया. वो मेरे को ज्यादा टाइम लगा बिकॉज आई वो makes ट्राई sense, कि अगर मैं रिस्ट्रिक्ट रखूं, लेकिन मैं बोला चलो जिसके पास जाएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको मैं वापस शेयर भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम. और इनफैक्ट ग्रुप में आप किसी को बोलेंगे ना सर ने वर्कशीट शेयर की, तो बहुत हेल्पिंग नीचे वाले पेरेंट है, कोई ना कोई शेयर कर देगा. ये मेरी सब वर्कशीट्स है. मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. प्लस माइनस में जाता हूँ मैं, विच इज वेरी सिंपल वन. जो मैंने आपको दिया था नंबर, अभी देखो यहाँ पे ये वाली वर्कशीट है. सिंपल एडिशन है. क्लियर. जो मैंने आपको उसमें से एक सैंपल दिया होगा, ये सारी प्री बेसिक के लिए कंपेयरिंग नंबर, ये ऐसा लिखा है मैंने. जो मैंने आपको स्पेशली बोला था, राइट. अभी एडिशन वाला नंबर है, राइट. ये वर्कशीट में फायदा क्या है आपका? What is the difference between what I have given you and what is this worksheet? This worksheet, when I see this, सर ये 2 डिजिट वाले हैं क्या? मतलब हाँ 2 राउंडिंग नंबर्स है, ये सिर्फ राउंडिंग नंबर्स है. ओके. अब यहाँ पे These are देखोगे, rounding numbers. Like करेक्ट. अगर मैंने यहाँ पे गलत आंसर लिख दिया, कैन यू सी दिस? कैन यू सी एनी चेंजेस इन द शीट? कैन यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस? Yes. Red smiley if Yes. there is wrong answer. करेक्ट. तो क्या आता है? पहली बात कि आप उसको बोलते हो ना ये करो. दिस इज वन ऑफ द माय इनोवेटिव इन्वेंशन. ठीक है. जो मैंने वर्कशीट बनाई है, ठीक है, ये वर्कशीट आपको बच्चों को देखो, वो कर देगा अपने आप. ठीक है. और उसको इमीडिएट समझ में भी आएगा मेरा आंसर गलत है. ठीक है. तो आंसर गलत करेगा तो उसको, उन लोगों को ना ये रॉन्ग वाला पसंद नहीं आता है, तो करेक्ट भी करना चालू करेगा. सो आप उसको वर्कशीट दो, उसको करेगा, आप उसको करेक्ट करो. ये वर्कशीट में बेनिफिट ये है कि वो खुद सेल्फ करेक्शन है. वो अपने आप करेक्ट करेगा, अपने आप सीखेगा. वो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके. So this is worksheet why I give it to my Vedic students और mental math students. इसको सारी यही वर्कशीट में देता हूँ. And if anybody wants to add, अभी एक वर्कशीट में आपको दिखाता हूँ. One of the, अच्छा मेरे को आपको टेबल बताना था. सॉरी, मैं आपको टेबल बता दूँ because I have only 5 minutes left. मैं आपको टेबल बता दूँ. There are endlessly, मतलब ऐसे सेशन आप करते जाओगे 3-4 घंटे तक मैं चलते जाऊंगा, आप छोड़ो भी नहीं यहाँ से. ठीक है. सो दैट इज सो कंटीजियस. अगर समझो जैसे आपको 1 डिजिट का टेबल आता है, फॉर एग्जांपल कोई एनीबडी वॉलंटियर फॉर गिव मी 1 डिजिट बाय 1, 2 डिजिट बाय 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, तो डिफिकल्ट वाला, वी शुड थिंक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन. एनीबडी क्विक? बताइए. 19. सर वर्कशीट मुझे भी नहीं मिली है अभी तक. मैं वापस भेज दूंगा. उसकी लिंक है, आपको लिंक पे क्लिक करना है, मिल जाएगा. लेकिन लिंक ही नहीं मिल रही है. मैं भेज व्हाट्सएप दूंगा ग्रुप वापस, में. चिंता मत करो. हाँ. मैं भेज दूंगा वापस. ओके ओके, थैंक्स. बोलिए मैम. स्वाति मैम, आपसे मैं कनेक्ट करूंगा. आपका नाम मेरे को याद रहेगा, स्वाति विटलानी. मैं आपको कनेक्ट करूंगा. मेरी बेटी की शादी करनी है, अभी मेरे को गोल्ड लेना, तो मेरे को भी पाए समझना पड़ेगा. मैं आपसे सर सीखने वाली हूँ. आप मुझे कनेक्ट करके मैं सिखा दूंगा. मैं Yes. सिखा तो दूंगा. मैं बाय नहीं कर सकता, सिखा तो दूंगा मैं. बस बहुत मत खींचो, खींच लिया अपने बराबर से. चलिए बताइए मैम, बताइए. यहाँ पे कोई बस बताइए मेरे को, क्या क्या नंबर सर? बताइए. कोई भी नंबर बताऊं मैम? हाँ, 2 digit by what digit? You tell me what the Two difficult one.
मुझे क्या डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब टू हाँ, कोई डिजिट भी के नंबर में? डिफिकल्ट कोई भी डिफिकल्ट नंबर बताए, 2 डिजिट बाय 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अच्छा हेलो हाँ बोल। सर ऐसे लाइक हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा तो ऐसे मैं easy करूंगा है, मैं basic है। करूंगा, आपको नहीं करना, चिंता मत कीजिए, मैं करूंगा। ओके आप अपना डिफिकल्ट नंबर बताइए। 327 मल्टीप्लाई बाय 44। वेरी गुड। अब आपने ना सबसे पहला स्टूडेंट का ये कर्तव्य होता है कि सुने, वो पूछा क्या, इंस्ट्रक्शन सुने। मैंने बोला 2 डिजिट बाय 3 डिजिट, 2 डिजिट हाँ बाय 1 तो डिजिट। लेकिन मैंने 3 डिजिट का आपको वो अभी बताया। टाइम है मैम, अभी टाइम है, आपका हाँ। बच्चा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में अच्छा है। ओके हाँ तो सर 77 बाय 44। वो ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ करेक्ट। नाउ Yeah. आपको अभी 44 ये सारे इक्वल है, तो मैं इसको थोड़ा अलग बना देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट बना देता हूँ, ठीक है। क्लियर। हाँ नाउ ये आपको सिंगल डिजिट का ये डिफिकल्ट है आपके लिए, मैं आपको इजी बना देता हूँ। 7 4 28 और 4 6 32। करेक्ट। आपको सिंगल डिजिट का टेबल आपके बच्चे को आता है, अजम्पशन है क्या, सिंगल डिजिट का टेबल उसको आता है, राइट। हाँ करेक्ट। आपने ऐड कर दिया, जब इसमें बीच में प्लस डाल दो, ये जो 2 नंबर आगे पीछे है उसको ऐड कर दो, हाँ तो आपका आंसर आ गया ये 1, क्योंकि 10 से ज्यादा है, 1 हाँ यहाँ पे कैरी होगा, ये आपका आंसर है। ओके हो गया आपका आंसर। ग्रेट। दिस इज वेरी मैथमेटिक्स। आप कोई भी नंबर बताओ। ओके 69 मल्टीप्लाई बाय 7 डिफिकल्ट है, ठीक है। 42 प्लस 63, आपका आंसर होगा 483। खत्म। आप चेक करो, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो आप। इसका रीचेक करे ऐसे करेगा, चलेगा? हमें तो इतना तो ट्रस्ट है ना यार कि आपने जो नहीं, दिया है। मेरे स्टूडेंट को सबसे बड़ी सीख ये दी जाती है, डोंट ट्रस्ट एनीवन, व्हाटएवर नॉलेज यू हैव यू शुड गेट इट वेरीफाइड। मेरे ऊपर भी ट्रस्ट मत करो, भले मैं टीचर हूं। दिस इज द फर्स्ट लेसन आई टीच देम। डोंट एवर ट्रस्ट एनीबॉडी। तुमको अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं होना चाहिए। यू शुड गेट ट्रस्ट। एक बिल्ड करो ट्रस्ट को, एक बार उसको बोलो ट्रस्ट एक बार आ जाए तब उसको, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड फर्स्ट लेवल पे नहीं होना चाहिए। उसको पहले वेरीफाई करो, आपको जितना नॉलेज उससे वेरीफाई करो, ये सही बोलता है 10 बार वेरीफाई करो, उसके बाद धीरे धीरे बिल्ड ट्रस्ट करो। हाँ करेक्ट। सो ट्रस्ट ब्लाइंडली मत करो किसी के ऊपर, ठीक है। तो ये वन थिंग हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू। अभी ये मेरा क्लास एंड करना है। आपको कोई कोई ये है, कोई क्वेरी है आपको? एनी क्वेरी एनीबडी हैज? आप पूछ सकते हो मेरे को। So the thing I asked about that carry one concept that I had to teach him in like a place thing only, right? That is what like. करेक्ट, क्योंकि आप प्लेस करोगे ना, आपका क्या होगा, आप यहाँ से जो कैरी करते हो, आपको तो आप जब एडिशन करोगे तो 14 होगा, राइट। आप 4 रखते हो और 10 आप लेके जाते हो ऊपर, राइट। लेकिन आप तो ऊपर 1 ही लिखते हो, 10 लिखते नहीं हो। आप 1 लिखते हो, आप बोलोगे 10 है, राइट। इट्स अ प्लेस वैल्यू। आपका एक्सपेक्टेड फॉर्म होगा ना, उसमें होगा सारी चीजें। So is it okay that if I to start with, if I teach him that we are not carrying 1 but we are carrying 10 basically, so that he उसको will प्लेस understand how it is going? नहीं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला 1, लेकिन 1 क्यों आता है उसको मालूम होना चाहिए। आपसे ये 1 कैरी क्यों हो रहा है, 1 बोरो That he क्यों हो रहा है। understand, but he cannot take it. हाँ तो आपको वो 10 लिखना समझ नहीं, में लिखना नहीं एक आ ही रहा है आपको, कि लेकिन how आपको ये to समझ आ take it जाए up. अनकॉन्शियस माइंड में, आपको मालूम होता है कि ये 30 नहीं है, 3 नहीं है, 30 है। इसके ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ 10, तो ये 40 बन रहा है, 4 नहीं बन रहा है। करेक्ट, उसको ये मालूम होना चाहिए। I और tried to उसको taught him in the same way कि place value का मैंने प्लेस उसको वैल्यू आप समझाया उसको because this is आपको 2 digit number, this is already have 10. आपको सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है नंबर नेम्स। कि नंबर नेम आते हो, ठीक है। आपको नंबर नेम, उन लोग को 100 का नंबर नेम आ गया होगा, राइट। 100 200 300 का भी नंबर नेम उन लोग आते होंगे, राइट। आप उसको बोलो कि आप जब 238 लिखते हो तो आप, मैं तो 238 बोलता हूँ, करेक्ट। लेकिन वो जो नंबर नेम का था क्या था, 200 क्या बोलते हैं, 200 30 और 8, तो ये बोलते हो। तो आप बोलो कि उसको अलग अलग करो, तो ये 2 नहीं है, 200 है। ये 3 नहीं है, 300 है। 8 है तो वो यूनिट 1 प्लेस है, 1 प्लेस 10 प्लेस। ये अगर उसको समझ में आ गया तो आगे आपका काम आसान हो जाएगा, करेक्ट। तो कंसेप्चुअली सिखाओ उसको। मैथ्स या जो भी चीज है,
आप उसको कंसेप्चुअली, मैंने बोला 5W, उसको कंसेप्चुअली सिखाओ ये क्यों होता है। आप जब भी उसको सिखाओ, उसको देखो कि आप अपने आप सोचो कि ये मैं क्यों सिखा रही हूँ, वेदर इट इज मेकिंग सेंस। आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, आपको रीलर्न करना पड़ेगा सारी चीजें, अगर आप नहीं कर रहे हो सारी चीज के लिए। और ये मैं तो बोलता हूँ कैरी और बोरोइंग कोई नहीं सिखाता है, 90% तो पेरेंट को नहीं मालूम है ऐसा होता है। आज आपको सीख गए, आप जो भी चॉकलेट मेरे को भेजोगे, मैं एड्रेस भेज दूंगा, मेरे को एक चॉकलेट कैडबरी सिर्फ भेज देना, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इनोवेटिव आइडिया, आई डील विद इट। मैं बहुत सारी वर्कशीट बताऊंगा, मेरे जो क्लासेस चलते हैं, मैं सबसे पहले सेशन में लेता हूँ, बोला तुमको कौन सी चॉकलेट पसंद है, क्योंकि वो बहुत इजी मेथड है। बहुत 100 में से एक बच्चा बोलता है सर मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ, ठीक है। अब उनको पूछता हूँ तो मैं यूजुअली लगता हूँ 5 स्टार, किट कैट, ये वो सारी चीजें मैं उनकी चॉइस लिख देता हूँ पहले। बोला कि अगर तुमने मेरी सारी वर्कशीट कंप्लीट कर ली तो तुमको हर 2 महीने में एक चॉकलेट आएगी एज अप्रिसिएशन। और तुमको फोटो क्लिक करना है, और ये एक्चुअली फॉलो होता है। मेरे यहाँ पे चॉकलेट के साथ फोटो क्लिक होता है, वो मैसेज लिखता है, और क्योंकि सारे पेरेंट्स है, मेरी पेरेंट्स के साथ की सेटिंग होती है, क्योंकि कोई बैंगलोर से, कोई चेन्नई से है, तो ये होता था। मैं बोला मैम जब मैं आपको फोन करूँ आप एक चॉकलेट लेके उसको फोटो क्लिक करके बोल देना कि सर ने भेजी है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी कि हमारा सेटिंग क्या चल रहा है, हम कहाँ पे उसको कर रहे हैं, उसको तो यही लगना चाहिए कि सर ने भेजी है, ठीक है। अब जब आप ओके जया मैम, आई एक्सप्लेन बिकॉज आई हैव टू मूव टू अनदर क्लास, ठीक है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप मेरे को 1-on-1 कनेक्ट करो तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा वो, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप जब उसको इनिशिएटिव करोगे ना, उसको एप्रिसिएशन जहां मिलेगा आपको, दे विल क्रिएट वंडर्स। एंड उनके पास अभी इतना टाइम है, फॉर्चुनेटली यू आर कनेक्टिंग एट द राइट टाइम। आप बहुत अच्छे, बहुत जन तो 5वीं 6वीं तक सोचते भी नहीं पेरेंट, यू आर कनेक्टेड राइट टाइम। आप अभी से निकल, उसके पास उन लोगों के पास बहुत टाइम है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाय द टाइम दे विल कम इन सेकेंड, आई विल गिव इन राइटिंग इफ आई फेल। आपका पूरे बच्चे का एजुकेशन अगर मेरे प्लान पे चले आप, अगर 3-6 महीने में अगर आपका टेबल, बच्चे का टेबल ठीक नहीं हुआ है, उसका पूरा एजुकेशन जब मेरे क्लास में आएगा फ्री कराऊंगा 10 तक। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा सर मैंने दोनों कराया है, एंड 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने जो प्रोसीजर बोली उसके हिसाब से करो, आपका बजट सेकंड में आने के पहले 1 to 10 का टेबल बन जाएगा। बट डोंट बी ग्रीडी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, डोंट बी ग्रीडी। अगर 5 मिनट बोल रहे हो तो 5 मिनट ही लो। एक टाइम आएगा, विद इन अ मंथ एक टाइम आएगा, वो शीट देखना बंद कर देगा, आंसर शीट देखना बंद कर देगा। और देखेगा तो भी कोई डिफिकल्टी 8 9 7 8 7 3 6 9 ऐसे वाला तो किसी का करेगा कुछ। बट देयर आर डिफरेंट वेज, यू नो दिस इज अ टेबल ऑफ 9, यू नो दैट। ये आपका जो हाथ है वो 9 का टेबल है। I know, sir, this thing. हाँ, तो ये बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज है। अब उसको करो तो उससे समझ में आएगा कहाँ है। इनफैक्ट इसको 6-7 के टेबल में भी आप कन्वर्ट कर, उसका और इनोवेटिव एरिया है जो 6-7 के टेबल में भी आप उसको बता सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है, तो देयर इज एंडलेस, मतलब बहुत बड़ा है। बट वर्कशीट के लिए आपको हेल्प चाहिए, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। आई ट्राई टू, बिकॉज ये प्रोग्रामिंग वर्कशीट डेवलप करने के लिए टाइम जाता है, एंड आई डोंट टाइप, आई यूजुअली प्रोग्राम ऑल द वर्कशीट्स, क्योंकि एक टाइम एफर्ट लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं, लेकिन बहुत सारा काम हो जाता है। क्लियर? यस मैम, व्हाट डू यू वांट टू रिकैप फॉर दिस, टेल मी मैम। या जो आपने मल्टीप्लिकेशन का वो स्ट्रेटेजी जो बताया ना, उसका एक आप क्विक रिकैप दे सकते हो? मल्टीप्लिकेशन है, मैंने आपको एक बताया था कॉइन्स वाला, करेक्ट। नाउ चलो लेट्स डू वन थिंग, ओके, लेट्स गिव अ होमवर्क टू द वो पेरेंट्स। 78x4 वाला। हाँ 17/4 वाला, हाँ ठीक है, वो तो सिंगल डिजिट का टेबल आपको आना चाहिए, आई विल रिपीट इट। वो ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला है राइट आपका, अगर आप कोई भी 2 डिजिट का टेबल ले लो, समझो 96 into 7 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो हो गया 63 + 42, ये दोनों जो एडिशन है बीच को अलग कर सेव कर दो, ये हो गया आपका आंसर। 96 × 7। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। तो मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और प्लस के आजू बाजू का नंबर है वो मल्टीप्लाई किया। इसके बहुत ओके सारे ओके। इसके डिसएडवांटेज है। एक वाला मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बताओ ये 23 × 3, इसका आंसर क्या आएगा? 69. एंड मेरी 9। मेथड है।
I have to add something, right? Yeah. अब मेथड तो सबके लिए चलनी चाहिए, राइट? Yeah. इसमें यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? Can we add 0? करेक्ट, सही जवाब। क्योंकि जब एक मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 डिजिट बाय 1 डिजिट मल्टीप्लाई, आपको यू शुड ऑलवेज गेट 2 डिजिट नंबर। सो यू वुड दिस आंसर विल बी 069, लेकिन ये 0 का मतलब नहीं, इसके लिए 69 होता है। दैट्स इट। तो ये Yeah. खाली आप जब सिंगल डिजिट आंसर आएगा तो यू टू मेक श्योर दैट 3 3 दा 0 नहीं होता, 9 नहीं होता है, 2 3 दा, और ये बहुत कम कॉम्बिनेशन के लिए, 4 के कॉम्बिनेशन के लिए आता है, जस्ट थ्रू दैट। आगे उसके कोई कॉम्बिनेशन, बाकी सारे 2 डिजिट पे आएंगे। क्लियर? सो होमवर्क एज अ सब्ट्रैक्शन वाला जो है ना, वो हाँ भी एक आप रिपीट करके देंगे प्लीज। मैम, सॉरी बट आई हैव टू लॉग इन फॉर अदर, मेरा ऑलरेडी 7 मिनट लेट हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, मैं आपको, आप अपना क्वेरी भेजिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, जितना मैंने लिखा था आप पॉइंट लिस्ट करो, और जो ट्रिक बताइए, आई वांट टू लिस्ट एवरीबडी अ पॉइंट कि कहाँ पे आया। सेकेंडली, ऑन द ग्रुप वट एवर यू लाइक द सेशन, आई विल हाईली अप्रिशिएट। अभी 23 लोग हैं अभी भी, आई एम हाईली ऑब्लाइज। अच्छे काउंट आए, 30 का एक बार टच किया था, बट 23 अभी भी है। ठीक है, सो वट एवर यू फील लाइक अबाउट द सेशन, प्लीज पुट इट ऑन द ग्रुप। ठीक है, आई इट विल बी एनकरेज, मतलब मेरा मोटिवेशन है, अगर मेरे को दूसरा सेशन लेना है वीकेंड में, इफ यू लाइक इट आई टेक अनदर सेशन, दैट इज ऑल्सो फ्री, बट ओनली थिंग इज यू शुड पुट, आई वांट नेक्स्ट टाइम, आई वांट मिनिमम 50 पार्टिसिपेंट्स। अगर वो आया तो, नहीं तो मैं चाउन करूंगा, अगर पहले 5 मिनट 50 पार्टिसिपेंट नहीं आए, मैं बंद कर दूंगा क्लास। ठीक है, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये 24-25 का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के 25 को लेके आए। बहुत इजी टास्क है, एक जन को और एक जन को लाना है, दैट्स इट। क्लियर? Okay, sir. Thank you, ma'am, Bijal, ma'am. Okay, you can put it on the group, whatever you have, whatever tricks I send, somebody can consider and send. I'll make a list and give it to you. Okay, sir. Okay. Thank you very much. Thank you everyone for joining. Thanks. Thank you so much, sir.